शुरू करने वाले हैं अपना प्रोग्राम। Yes, I think we can start. Greetings, everyone, and welcome to our online educational event for the Right to Resist International People's Tribunal for Palestine. हम शुरू Today, करते हैं। we'll be joined by powerful lineup of राइट टू speakers who will provide an introduction to the रेजिस्ट history of इंटरनेशनल Palestinian पीपुल्स people's ट्राइब्यूनल struggle against the US Zionist जॉनिस्ट occupation and how ऑक्यूपेशन this के खिलाफ tribunal हम is शुरू part of करते हैं। this historic struggle and widely growing Palestine solidarity movement. ये Before we ट्राइब्यूनल begin, we will अवामी first ट्राइब्यूनल जो strictly है use the language इसराइल of के your कब्जे language. के खिलाफ है, We have किस तरह से interpretation ये इस available for Spanish, जेनोसाइड French, को काबू Indonesian, करता and है, Urdu. ये बताया At जाएगा। the bottom of your screen, you should स्पेनिश, see a फ्रेंच, blue इंडोनेशियन icon भाषा और in उर्दू your में Zoom होगा menu. तर्जुमा इसका। Please click that icon and select the language you need. If you do not see that, you may need to click the three आप dots अपने जूम के titled पेज More में on your menu to find the option for थ्री डॉट interpretation. को, अगर Please note that this लैंग्वेज is नज़र not नहीं an आ रहा, issue with Zoom, तीन डॉट को and we had to क्लिक set करें, Urdu वहां as आप Japanese उर्दू के channel. लिए जैपनीज पे So if क्लिक you करें तो need उर्दू में Urdu सुनेंगे। interpretation, please select Japanese. Our interpreters will put this into अगर the chat आपको for उर्दू you तर्जुमा so चाहिए others तो बराए can read मेहरबानी आप as well. जैपनीज चैनल For other house क्लिक rules करें। tonight, this event is being conducted in a webinar format, which only speakers will be able to use their microphone. ये We will encourage you to प्रोग्राम put questions into the वेबिनार Q&A फॉर्मेट में box होगा that is और available, स्पीकर आके अपनी which will बात be करें। posed to the speakers आप during the सवाल जवाब question and के answer बॉक्स जो portion है at जूम the के end. अंदर जो है उसमें सवाल And जवाब कर सकते हैं, we are also live streaming the event, and we encourage you to share जो it on आखिर your में social किया media जाएगा। and of ये course with your इवेंट friends and लाइव स्ट्रीम contacts भी and होगा, members of your organization as well. सोशल We'll मीडिया also पे भी ये monitor the होगा। questions that come in from the social media feed as well. This webinar will also be recorded and posted सोशल via मीडिया में जो ILPS सवाल आ रहा है web वो भी platforms, जो है उसको including भी on लिया the जाएगा। Right to Resist website. Please आईपीएस note के that this वेबसाइट पे भी link will ये be used. रिले किया जाएगा And और now, वेबसाइट पर भी let's get started. लोगों का नाम Recent इसमें शामिल ceasefire नहीं किया agreement जाएगा। between the Palestinian resistance and the Israeli government has filled the news headlines in every corner of the globe. Yet the mainstream Western media has ये जो celebrated this हालिया event सीज without फायर हुआ looking है critically at इसराइल how के it historically बीच, got to this moment, and ये fails to look at बगैर the root इस cause बात को of this देखे हुए genocide, meaning कि the Zionist सही occupation मानों itself. में ये It is अमन होगा या crucially इसके important that we understand the central ज़मीनी role of हकायक the को नहीं Palestinian देखा गया। people and ये their बहुत brave ज़रूरी है resistance to कि हम ये occupation and समझें genocide फ़लस्तीन के displayed अवाम through the entire और जो history बहादुरी से of ये this conflict. जद्दोजहद कर रहे हैं इस We नस्ल just कशी को और passed लड़ 2 रहे हैं, years since इसको the भी हम beginning of समझें। the genocidal war of Israel waged against the Palestinian people. 2 साल हो चुके We हैं intend इस to liberate नस्ल Palestine कशी को as a people. ज़ायनिज़्म की तरफ For से, last 2 years, the जो Zionist कि regime has retaliated फ़लस्तीनी with अवाम को उनकी barbarities ज़मीन से भगाना understood चाहते in हैं। its 77 years of occupation, an act that has been बहुत nearly universally सफाकी labeled के as साथ genocide and a war of extermination फ़लस्तीनी against लोगों को Palestine. निकाला गया है और It ये has सिलसिला 77 indiscriminately साल से bombed and जारी है targeted population और of फ़लस्तीनी more than अवाम के 3 खिलाफ, million people, और उनको leading to a direct battle बिला that is estimated इम्तियाज to बम का be the निशाना equivalent बनाया of जा रहा है, 60,000 human चाहे beings, जिसमें and आधे से ज़्यादा we जो all मरे know हैं more लोग than half वो of them was women and औरतें children. हैं। 60,000 But से ज़्यादा despite the horrific इंसान onslaught इससे being unleashed by the मारे Zionist गए हैं, occupation, backed जिसमें by the आधे से US, ज़्यादा मर्द the और amount of औरत है। 318 billion in weapons since अमेरिका 1948, ने अब तक इस 70.9 जंग के billion लिए alone since October 7, 318 बिलियन 2022, डॉलर अब तक दे the people चुका of है। Palestine has never 1948 में backed down. अक्टूबर 7 से लेके Because अब तक सिर्फ 2 Palestinian सालों people में and their resistance forces 17.9 बिलियन bravely डॉलर दे asserted चुका their है right to अमेरिका resist इस the जंग Zionist के occupation लिए, through the फ़लस्तीनियों को मारने के Jerusalem लिए blood campaign. इसराइल को दे चुका है। It is the history of steadfastness और and ये जो resistance अलक्सा that we फ्लड will जो discuss 7 today. तारीख को शुरू किया था 2 For साल पहले, the वो unbeatable resistance of बहादुरी the से आज people तक लड़ रहे that हैं brought early फ़लस्तीनी ceasefire आवाम। into existence और and ये made it impossible for the Zionist ये जो project to eliminate बहादुरी से जंग लड़ रहे हैं पिछले and 2 it is सालों से, this resistance that इसके बावजूद tribal फ़लस्तीनी councils आवाम को initiatives like the International People's ख़त्म करने Tribunal के लिए that will जद्दोजहद uphold the जारी है। legacy of
इसके बावजूद कि पीस सीज फायर के लिए बहुत कोशिशें हो रही है। of the world for the historical record as moral inspiration दुनिया for के geopolitical अमन action. वाले लोग अभी भी Our फलस्तीनियों के title साथ of है। the tribunal, right to resist, the Palestinian people versus इस Israel's ट्राइब्यूनल का जो occupation and US टाइटल है, government is an राइट टू रेजिस्ट, international people's मुजाहिमत tribunal का of हक, the US-backed फलस्तीनियों का Zionist occupation's war, forced starvation, इन and आलमी genocide in Palestine. आलमी Today, we will ट्राइब्यूनल see एक judicial tribunal अवामी अदालत investigate and समझ arrest जाएं alleged जो war फलस्तीनी crimes अवाम के हक में इसराइल के by खिलाफ Israel and its backers, उनके शवाहिद namely को the दिखाएगा US, कि वो UK, कौन कौन से France, उन्होंने Germany, जंगी जराइम and किया others. है, खास It तौर से serves as a अमेरिका, platform for victims and इंग्लैंड, witnesses जर्मनी, to फ्रांस और दूसरे give an ममालिक। organization to represent evidences and legal arguments related to the committed crimes against the Palestinian people. Despite its name, of इस course, इस tribunal is इस not merely a ट्राइब्यूनल में legal बताया body. जाएगा कि It is a कैसे political action. इन मुल्कों ने, This खास तौर exercise से is अमेरिका ने primary objective is to जेनोसाइड के लिए, build नस्ल international कशी के लिए solidarity अपना किरदार by अदा किया। increasing the power of the people. इसका असल मकसद The यह legal है proceedings कि that come out of दुनिया the में proposed आलमी tribunal are यकजहती meant to कायम serve किया जाए both फलस्तीनी अवाम के objectives लिए। in all fields of जो people's इसमें से struggle, निकलेगा, not just the जो conflicts. नताइज निकलेंगे इससे, It is for this वो reason that इंसानी we present this critical लोगों की educational जद्दोजहद को session आगे in बढ़ाए। build up to इसी the के लिए tribunal in the upcoming ये वाला October आज का 22 एजुकेशन to सेशन रखा 23 जा रहा है in Barcelona. कि ट्राइब्यूनल क्यों हो रहा है। If this is your नवंबर first time 20 hearing और about 23 the को right to बार्सिलोना में resist जो ट्रायलन International हो रहा है People's Tribunal ट्राइब्यूनल, for उसके लिए Palestine, ये you can तालीमी learn प्रोग्राम about है and शऊर get के लिए, involved ताकि at लोग समझ सकें ये ट्राइब्यूनल क्यों हो रहा है। www.internationalsolidarity.org/tribunal. आप इसमें और शामिल हो We'll सकते hear हैं directly from Palestinian struggling इंटरनेशनल on the key points of solidarity.com Palestinian resistance to वेबसाइट से। Zionist settler colonialism throughout the decades and what led up to the historic actions of the October 7, 2023. आप सुनेंगे कि किस तरह से ये तारीख है फलस्तीनी लोगों के ऑक्यूपेशन की और उनके 77 साल से कैसे उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, ना सिर्फ अक्टूबर 7 से। इसके अलावा इस वेबिनार में आप ये भी समझेंगे और सुनेंगे कि अमेरिका का और उसके हमनवाओं का क्या किरदार रहा है इस जेनोसाइड में। और हम आखिर में ये समझेंगे कि आलमी अवामी ट्राइब्यूनल कैसे ये मदद करेगा लीगल, कानूनी और अखलाकी और सियासी हमायत इस जद्दोजहद का जो फलस्तीनी आवाम कर रहे हैं। हमारे जो पहले स्पीकर हैं वो वाल अल ज़ेरे है, जो कि जब से हिस्ट्री हो रही है वो इसके खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं। जैन जो है फ़लस्तीनियन एक्टिविस्ट है, एनवायरमेंटल साइंटिस्ट है और ये एक वाइस प्रेसिडेंट है फ़लस्तीन सेशन फॉर डेवलपमेंट के। वाइल द फ्लोर इज योर्स। उर्दू वालों के लिए अब अजरा तर्जुमा करेंगी, उर्दू में जो लोग हैं उनके लिए अजरा तर्जुमा करेंगी। take you on a journey through a century of history, a history of the Palestinian people's struggle, their deep connection to their homeland, and their enduring struggle for freedom and dignity. In fact, the Palestinian story is complex, but it's a human story. So नहीं आ a रही, human story. My aim is not to जपनीज में जाओ। simplify ये how to जो मैं आपको बताना आ चाहता रही है। हूँ वो फ़लस्तीन that की have shaped जद्दोजहद the और struggle of उनकी the आवाम की Palestinian people. जद्दोजहद बताना चाहती हूँ। So let's begin with the first key moment, which शुरू करते हैं। call it the dispossession. So in fact, the struggle of the Palestinian people did not begin in 1948, but decades earlier. जो फ़लस्तीनी आवाम है उसकी जद्दोजहद 1948 में नहीं, उससे बहुत पहले से शुरू हुई। फ़लस्तीन जो था वो ऑटोमन एम्पायर या सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा था और हम कई तरह के लोगों के मजहबों में बीच में साथ रहा करते थे।
So the first major turning point came in 1917 with the Balfour Declaration. The British government 1917 में सबसे पहला रुख मुड़ाना हमारी तारीख का, क्योंकि एक अहदनामा दिया गया जिसमें कहा गया कि फ़लस्तीन में एक नया मुल्क बनाया जाएगा। ये सब कुछ फ़लस्तीनी अवाम की मर्जी के बगैर हुआ। हालांकि वो 90% अवाम थी जो फ़लस्तीनी थी, लेकिन ना उससे पूछा गया ना उसकी इजाज़त ली गई। और फिर इस तरह से जो बरतानिया के कंट्रोल में ये इलाका था उस वक्त, इसको ब्रिटिश मैंडेट कहते थे। 1936 से लेकर 1939 इस जमाने में भी एक बहुत बड़ा जद्दोजहद हमारी अवाम ने किया। ये जमाना था 1936-39 जहाँ पे हमारी समझें कि हमारी नेशनलिज्म की शुरुआत शुरू हुई। सारे फ़लस्तीनों ने ब्रिटिश साम्राज्य और ज़ायोनिज़्म या सहूनियत के खिलाफ हमने लड़ाई शुरू की। जो वहाँ पे किसान थे उनसे ज़बरदस्ती ज़मीनें ली गई। और ना सिर्फ किसानों बल्कि सारे जितने भी मुख्तलिफ तबकात थे उनके साथ बहुत सख्त साम्राज्य का रवैया था। इनकी कोशिश ये थी बरतानिया की कि जो फ़लस्तीनी मुज़ाहमत है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। Kanafani viewed it as a revolutionary score that laid the groundwork for the future resistance, including the emerging of organized armed struggle. उस ज़माने में किताबें लिखी गई जिनने रास्ता दिखाया कि हमने कैसे अपनी ज़मीन के लिए जद्दोजहद करनी है, और उसी ज़माने में मुसल्लह जद्दोजहद की तरफ भी अवाम ने अपना रुख लिया। Was the struggle against a colonial settler project. So Zionism was not a return to homeland. तो जो जद्दोजहद थी फ़लस्तीनियों की वो एक पूरी जद्दोजहद थी जिसमें कि हमने एंटी कॉलोनियलिज्म यानी नौआबादियात के खिलाफ अपनी एक जद्दोजहद को शुरू कर दिया। उसके बाद जो दूसरा फेज था वो 1948 में नकबा जो हुआ, जिसमें के जिसे को हम कहते हैं कि तबाही, यानी कि लोगों को बाहर निकाल दिया गया। मैं भी उस जमाने में उस नकबा का शिकार हुआ। ब्रिटिश मैंडेट ख़त्म हुआ उस वक्त और ब्रिटिश ने ज़मीनों को बांट दिया, यानी फ़लस्तीन को बांट दिया, और ज़्यादातर हिस्सा यहूदियों को दिया गया और फ़लस्तीनियों को बिल्कुल अलग कर दिया गया। 7,50,000 लोगों को अपने घरों से बाहर निकाल दिया गया, अपने गांव से बाहर निकाल दिया गया, उनकी ज़मीनों को ख़त्म कर दिया गया, उनकी हर चीज़ को तबाह किया गया और उनसे सब कुछ ले लिया गया। उसको हम नकबा कहते हैं। और लोग चारों तरफ फैल गए, गाजा की तरफ, मुल्क से बाहर भी चले गए, फ़लस्तीन से बाहर भी चले गए, और मुख्तलिफ मुकामात पर ये लोग जो महाजिर बने वो इधर से उधर हो गए। इस ज़माने में फ़लस्तीनियों को अपनी मईशत पर, अपनी ज़िंदगी पर किसी किस्म का कोई अख्तियार नहीं था। If we speak about this period of time, so following the Nakba, where 750,000 Palestinians नकबा के बाद का जो ज़माना था, जब
2,50,000 लोगों को अपने मुल्क से, अपनी जमीन से हटा दिया गया। और उस वक्त से हमारी जमीन पर और लोगों ने कब्जा कर दिया, और वहां से हमारी जद्दोजहद शुरू हुई कि हम अपनी सेल्फ डिटर्मिनेशन, अपने खुद इरादियत के लिए हमने जद्दोजहद करनी शुरू कर दी। उस वक्त से लेके अगले 20 साल तक हम अपनी जद्दोजहद के लिए मुस्तकिल लड़ते रहे, अपनी आज़ादी के लिए हम लड़ रहे। पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO उस जमाने में बनाई गई थी, जिसने इस ऑक्यूपेशन, इस कब्जे के खिलाफ जद्दोजहद करनी शुरू कर दी। 1967 में एक और बहुत अहम वक्त आया, वो 6 दिन की जंग कहलाती है। और उस जमाने में और कई इलाके फ़लस्तीन के इन लोगों ने कब्जा करना शुरू कर दिया। और उस जमाने में फिर दोबारा से बहुत सारे लोगों को महाजिर बना के अपने इलाके को छोड़ना पड़ा। अब हमारी जद्दोजहद सिर्फ इस पे नहीं थी कि हमने कब्जा ख़त्म करना है, यहूदी कब्जा, बल्कि सेहूनी कब्जा, बल्कि हमें उनकी जो मिलिट्री कंट्रोल था उसके खिलाफ भी हमने जद्दोजहद करनी शुरू कर दी। 1967 के बाद से सेहूनी हुकूमत ने हमारे ऊपर एक इकोनॉमिक कंट्रोल करना शुरू किया, एक माशी कंट्रोल हमारे ऊपर करना शुरू किया। यानी कि हमारे मजदूरों को, फ़लस्तीनी मजदूरों को अपने इलाकों में काम के लिए लेके जाना शुरू कर दिया, हमारी रोजगार को ख़त्म करना शुरू कर दिया। और 1987 से फिर एक बहुत बड़ी जद्दोजहद शुरू हुई, जिसको हम इंतफादा कहते हैं। और ये बहुत बड़ी जद्दोजहद के नाम से शुरू हुई थी, अवाम खड़ी हो गई, और यानी ये 1987 में इंतफादा के नाम से। जब ये पहला इंतफादा हुआ, पहले इंतफादा का मकसद था कि हमें अपने फ़लस्तीनी अवाम, हमारी फ़लस्तीनी हैसियत को मनवाना था। और वहीं से फिर बात शुरू हुई ऑस्लो पीस फ्रेमवर्क की ना। ऑस्लो नॉर्वे में एक मुल्क है, वहाँ पे अमन का प्रोग्राम शुरू किया गया था। वहाँ कहा यह गया उस ऑस्लो प्लान में कि जो ज़मीनें फ़लस्तीनियों की हैं उस पर अगर यहूदी कब्जा करते हैं तो वो इलीगल है, वो गैर कानूनी होगा। लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और फिर उसके कुछ अरसे के बाद दूसरा इंतफादा शुरू किया गया, जिसमें ज़ायोनिस्ट ऑक्यूपेशन यानी सेहूनी कब्जे के खिलाफ दोबारा से हमने जद्दोजहद शुरू की। और उस वक्त ऑस्लो पीस प्लान जो था वो समझे टूटना शुरू हो गया, और उसकी जो अफादियत थी वो ख़त्म हो गई। the demographic consequences of the Nakba was the increase of the population of Gaza between 1947 and तो एक जो मसला हुआ जो कब्जे की वजह से 1948 के बाद से, कि गाजा की तरफ बहुत सारे जो महाजिर थे, जो फ़लस्तीनी महाजिर थे जिनको निकाला गया अपनी ज़मीनों से, वो आना शुरू हो गए गाजा की तरफ। 1949 में 2 लाख फ़लस्तीनी महाजिर गाजा की तरफ भागे ना, चले गए। और उस वक्त उसी वक्त से सहूनी जो थे वो इस चक्कर में थे कि किसी तरीके से गाजा स्ट्रिप को कंट्रोल कर सकें, उसके ऊपर कब्जा कर सकें। 2007 the fracture of became official in 2007 when a Palestinian the Palestinian 2007 में ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि जो कुछ भी एक माहिदा सा था सहूनियों के बीच में और फ़लस्तीनियों के बीच में, वो बिल्कुल ख़त्म होना शुरू हो गया।
और जायोनिस्ट ने यानी सहूनियों ने एक सीज यानी नजरबंदी कर दी गाजा के ऊपर और उसको एक खुला कैद कहा जाना लगा गाजा को, क्योंकि उन लोगों ने उसके ऊपर पूरी नाकाबंदी कर दी, ना कोई अंदर जा सकता था ना कोई बाहर आ सकता था। इसी तरह से जो सेहूनी ऑक्यूपेशन थी, कब्जा था, वो वेस्ट बैंक में जो आबादियां थी फलस्तीनियों की, उनके ऊपर भी अपने पूरे के पूरा जुल्म करते रहते थे। They were also under the control of the Zionist occupation. So if we try to और कोई इलाका है सबा, वहां पर भी जो फलस्तीनी थे उनके ऊपर सेहूनियों ने अपना पूरा कब्जा किया हुआ था। तो हमारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुस्तकिल 1947 से लेकर अभी तक बार बार इधर से उधर भटकते रहते हैं और उनको अलग अलग किया गया है, क्योंकि गाजा और वेस्ट बैंक को बिल्कुल अलग कर दिया गया और लोगों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं रहा ना। और हमारे कुछ भी जितना भी उन्हें जुल्म किया है उसके बावजूद हमारी जद्दोजहद अपनी जगह कायम है। और हमारी जद्दोजहद का सबसे अहम नुक्ता ये है कि हमें अपने लिए खुद इरादियत का हक है कि हम कौन है और हमारी जमीन क्या है, इसका फैसला हम खुद करेंगे। और हमारे लोगों में कमाल की साबित कदमी है, अपने लिए खड़े होकर लड़ने की उनमें बहुत शदीद हिम्मत है। What's important now after the ceasefire is what the Palestinian need from the international solidarity. In fact, during the war in Gaza, the international solidarity played a very important role in supporting the Palestinian struggle and resistance in Gaza. So as we all followed the speech of Donald Trump, he said to Netanyahu that और हमने सब ने देखा है कि जब से इन्होंने अटैक किया है तो पूरी दुनिया ने फलस्तीन का साथ दिया है। और जो बैनुल अक़वामी सॉलिडारिटी और यकजहती दिखाई गई है फलस्तीन को, उसकी वजह से बहुत बड़ा प्रेशर आया है ट्रम्प के ऊपर। उनके ऊपर माशी प्रेशर भी आया है और यकजहती का प्रेशर भी आया है। तो जो भी काम आप लोग करते हैं, किसी भी किस्म का, आप चाहे सोशल मीडिया पे हमारी हिमायत करते हैं या कहीं पे भी हिमायत करते हैं, तो उससे हमारी हिम्मत भी बनती है और सहूनियों के ऊपर उसका जोर भी आता है। Making more political and diplomatic pressure. This is about changing the policies of governments and international bodies. Also, civil और इसकी वजह से हमारे हम बहुत सारी तब्दीलियां ला सकते हैं अपने लिए, अपनी हुकूमत में, अपने डिमांड्स में। आपके प्रेशर की वजह से हमारे पास ये मौका मिलता है कि हम अपनी चीज़ों को तब्दील कर सकें। इसलिए अब आप लोगों की डायरेक्ट मदद बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, यानी कि एक दूसरे की मदद फ़ौरन, हमें फौरी मदद आपसे बहुत ज़्यादा चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका सुनने का। बहुत शुक्रिया वायल, आपकी प्रेजेंटेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। Many have said that today Palestine is the moral compass of the world and a beacon for all liberation movements. वेल ने बताया कि मतलब वायल ने कहा कि आज फ़लस्तीन जो है वो सारी दुनिया के लिए एक इखलाकी समझे रास्ता बन गया है कि जो रास्ता फ़लस्तीन ने दिखाया है वो हम सब के लिए एक पूरी रहनुमाई का की शक्ल ले गया है। To action of world's peoples to
और जो हमारा ट्राइब्यूनल है जो हम करने वाले हैं वो भी इस पूरी दुनिया में जो यकजहती की लहर उठी है, बहुत बड़ी लहर उठी है, उसी का ये एक हिस्सा है। We will show the lyrics on the screen in English, Spanish, French, and in Bahasa. ये नगमा KHS कराची हाई स्कूल में बच्चों ने गाया था। ये प्रोग्राम PKMT रूट्स और कराची हाई स्कूल ने मिलकर किया था अभी अक्टूबर 7 को। Palestine will be free. Palestine will be free. Palestine will be free. Palestine, Palestine. Palestine, Palestine. 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 Palestine, Palestine. Palestine, Palestine. बहुत शुक्रिया सोफिया थिएटर। Hi, Phil. Amazing performance. Please give virtual emoji reactions and applauses for the performance. बहुत आला परफॉर्मेंस है। That last video आप लोग was from जो our लोगों ने live परफॉर्म किया है उनके लिए for social इमोजी change and सेंड करें social ताकि उन लोगों को लगे कि आपने उनको अप्रिशिएट किया है। We encourage you all to sign your organization's
onto tribunal as a हम matter आप of सब truth. से You can go by बहुत our अल्तमास FSD करते हैं कि website, अपने अपने इदारों को internationalsolidarity.com/tribunal, and over there you will को see एंडोर्स the करें इस ट्राइब्यूनल Our को। next speaker आप will be ये कर speaking सकते rulers हैं, in the जो west लोगों को fighting मदद चाहिए Zionist अपने offensive. इदारों The को role of एंडोर्स करने के international लिए वो रूट solidarity से in रब्ता supporting करें या गौर से Palestinian रब्ता people's करें, rights to तो हम resist. आपकी मदद कर We will देंगे। hear from Sarah Flanders of International Action Center and United National जो Anti-Discrimination अगली स्पीकर हैं Coalition. वो सारा फ्लॉन्डर्स Sarah, हैं, the floor is yours. जो अमेरिका की एक कोलिशन का हिस्सा है, यूनाक UNAC। इनका नाम है सारा। मेरे लिए बहुत इज्जत का मुकाम है कि मैं यहाँ पर हूँ। सबका बहुत बहुत शुक्रिया, ऑज का, वायल का और इंटरनेशनल लीग ऑफ पीपल स्ट्रगल, सबका शुक्रिया। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं सारे प्लान सुन रही हूँ कि ट्राइब्यूनल के बारे में क्या होने वाला है। तो मैं सबसे पहले गाजा और गाजा की मज़ाहमत के साथ शुरू करती हूँ। गाजा की जो स्टेटमेंट आया है उसमें उन्होंने कहा कि हमारी मज़ाहमत अभी जारी है और मज़ाहमत रहेगी, और मेरे लिए ये बहुत अहम है कि कुछ भी हो जाए ये लोग सेहूनी कब्जे के खिलाफ खड़े रहने के लिए हर वक्त तैयार है। नेतन्याहू ने कहा था कि हमास को और हर मुजाहिमती ग्रुप को ख़त्म कर दिया जाए, उनको बंद कर दो, उनको डिसबैंड कर दो और सारे फ़लस्तीनियों को गाजा से बाहर निकालो। और नेतन्याहू ने बड़े फ़ख्र से, बड़े जोर शोर से कहा था कि कभी कोई फ़लस्तीन नहीं होगा। कहते हैं हम कभी हमास से ना मिलेंगे ना नेगोशिएट करेंगे, लेकिन अब आप पिछले दिनों को देखें, ज़ायोनिस्ट सहूनी जो हैं वो बिल्कुल हार गए। कोई इजराइल ने अपनी किसी भी डिमांड को हासिल नहीं कर सका और पूरी दुनिया में ये अकेला रह गया, और सारी दुनिया फ़लस्तीन को गले लगाती है और उसको अपने दिल से लगा के रखती है। और कोई ट्रम्प टावर गाजा में नहीं बनेगा, यानी उसने कहा था ना मैं एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाऊंगी। अमेरिका जो है वो सबसे ज्यादा फ़लस्तीन को इजराइल को बहुत बड़ी मदद देता है, मिलिट्री भी और माशी भी। 228 बिलियन डॉलर्स 2000 पता नहीं कब से लेके 2024 तक दिए गए, और यानी ये बहुत बड़ी रकम है जो कि अमेरिका सेहूनी हुकूमत को फराहम कर रहा था। इतने पैसे थे कि अगर ये पैसे अमेरिकी आवाम को दिए जाते तो हमारे मुल्क की लोगों को पूरी सेहत मिल जाती, हमारे सेहत की सहूलियात मिल जाती, ना गुर्बत रहती। लेकिन हमारे को नहीं दिए गए। 330 मिलियन डॉलर्स सारे के सारे इन ज़हूनियों को दिए गए, जो कि निहायत ही खतरनाक मिलिट्री बनाई गई है। लेकिन इतना कुछ मिलने के बावजूद भी सेहूनी जो है वो कब्जा नहीं कर सके। माशाल्लाह 4 दहाइयों से, 40 साल से अमेरिकी हथियार दिए जा रहे हैं इन लोगों को, सेहूनियों को, लेकिन ये फिर भी मुकाबला नहीं कर पा सके। 1948 से लेकर अब तक अमेरिका ने सेहूनियों को, इजरायलियों को बेतहाशा पैसे दिए हैं, और उन्हें भी गैर मुल्की अमदाद सेहूनियों को दी गई है, जिसमें हथियार भी शामिल हैं। आम हथियार भी दिए गए और बहुत एडवांस्ड हथियार भी दिए गए, और अमेरिका सबसे आगे है जो इन कमबख्त ज़ायोनिस्ट सेटलर्स को की पुष्ट पनाही करता है, जो सेटलर्स वेस्ट बैंक में हैं, यानी जो आके गैर कानूनी ज़ायोनिस्ट आके वेस्ट बैंक के लोगों के ऊपर कब्जा किए हुए। जब से इजराइल बना है इसकी कभी भी अपनी कोई पुष्ट नहीं थी, ये हमेशा दूसरे मुल्कों पर, वेस्टर्न ममालिक के ऊपर इसका इन्हिसार रहा है। इसकी अपनी कोई इंडिपेंडेंट
हैसियत नहीं थी। ये हमेशा दूसरों की माशी मदद के मुताबिक जिंदा रहा है। इसकी सिर्फ वजह यह है क्योंकि इजराइल जो है वो गैर मुल्की वेस्टर्न हुकूमतों के लिए का एक चेक पोस्ट है। उनको ये इस इलाके के बारे में सारी इतला देता है। अभी पिछले 2 सालों में अमेरिका ने $23 बिलियन और दिए हैं। ये उससे ज्यादा वाली रकम है, यानी हर साल अमेरिका $3.8 बिलियन वैसे ही देता है। यानी 3.8 बिलियन तो दे ही रहा था, लेकिन साथ साथ उसने $23 बिलियन और दिए, जिसमें मिसाइल डिफेंस और आयरन डोम, जो कहा जाता है ना कि पूरा उनका एक फौलादी डोम है जिससे कोई गुजर नहीं सकता। पिछले 10 साल में पिछले 10 साल से अमेरिका ने गारंटी किया हुआ था कि इजराइल को हर साल $3.8 बिलियन मिलेंगे। ये बहुत बड़ी माली मदद है और इक्विपमेंट्स की भी मदद है। तो जो सहूनियों के पास एक इम्प्यूनिटी का मतलब होता है कि वो जो मर्जी चाहे करें, उनको कोई रोकने वाला नहीं था। तो कई अलग अलग माहिदे हैं जो सहूनियों को इस किस्म की जगह देता है कि उनका जो दिल चाहेगा वो कर सकेगा। बहुत सारी अलायंसेस हैं, यानी दोस्तियां हैं जो कि मिलिट्री एड के साथ जुड़ी हुई हैं, बल्कि उसके अलावा जो इजरायली बॉन्ड्स होते हैं, यानी कि वो इन्वेस्टमेंट के लिए देते हैं, तो वो पता नहीं $49 ट्रिलियन पूरी दुनिया में फैले हैं। 49 बिलियन बोला या ट्रिलियन बोला है? हाँ, शायद मैंने गलती की। ये बॉन्ड जो है वो बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, माशी कंपनियां, एजुकेशनल फाउंडेशन, यूनिवर्सिटीज, वो सब ये बॉन्ड्स खरीदते हैं क्योंकि इसमें बहुत मुनाफा होता है। यानी इजरायली बॉन्ड्स में हर तरह के इदारे अपना पैसा डालते हैं। उसमें इदारे भी होते हैं, यूनिवर्सिटियां भी होती हैं और लोकल इंस्टीट्यूशंस, मुकामी इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं। तो ये सारा कुछ समझे प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है, जो कि इसमें जो इनके मुल्क में 2 सियासी ग्रुप्स है ना, डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स, दोनों मिलके सहूनियों को मदद करते हैं। और ये निहायत शॉकिंग खबर है कि यहाँ तक कि जो हुकूमत की जो तिजोरी है वो भी इनके बॉन्ड्स को खरीदती है। यानी अमेरिकी हुकूमत के डिफरेंट इदारे हैं, खास करके फाइनेंशियल इदारे हैं, वो भी इनके बॉन्ड्स में पैसे लगाते हैं। $ट्रिलियन, यानी $ट्रिलियन होते हैं, यानी एक के बाद आप अगर 12 जीरो लगा दें तो इतने $मिलियन इनने अमेरिका के डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में पैसे लगाए हुए हैं। तो ये आप देखें, यहाँ तक हालत है कि हमारी यूनिवर्सिटीज ने भी इनके इन्वेस्टमेंट बोर्ड में पैसे डाले हुए हैं। ये बहुत ज्यादा मुनाफा देने वाले बॉन्ड्स हैं यहाँ की हुकूमतों के लिए। Now, what are these Israeli bonds for? They really are development funds for this fake. लेकिन ये इजरायली बॉन्ड्स का मकसद क्या है? Which is held up from the West. It supports the infrastructure. ये इजराइल की डेवलपमेंट के लिए, तरक्की के लिए ये बॉन्ड्स हैं। उनके मुल्क में इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को चलाने के लिए और मिलिट्री के जो जरूरियात है वो सब इन बॉन्ड से निकाले जाते हैं।
is guaranteed investment money कहा जाता है कि through इजराइल US बहुत हाईटेक है institutions for every उस इलाके में। conceivable project. वो उसकी वजह यही है There's कि no other अमेरिका country that has this इस बात का continued level of पूरी support. जिम्मेदारी लेता है So money कि flows into the Israeli अमेरिका stock से market, US पैसा money. यकीनन इजराइल जाएगा, US people's institutions ताकि here यानी fund pension अमेरिकी पैसा from universities. इजरायली स्टॉक मार्केट में जाता है, हमारे लोगों का Not पैसा because it's some हम Satanist इजराइल में scheme, भेजते हैं। but it's because hedge fund managers push public funds from universities and state pension funds. They use it as their giant इसकी वजह यह है कि जो slush fund. प्राइवेट सेक्टर के These huge incentives सरमायाकार हैं, motivate the वो commercial अमेरिका का elite पैसा to जानबूझकर aid and always seek इजरायली funds फंड में from डालते हैं, military क्योंकि funds. उनकी सारी So when मुनाफे जो Israel हैं वो wants इजरायली to फंड do के that, साथ साथ touch जुड़े हुए। Salami, they describe it themselves as their unsinkable aircraft carrier in the region. वो कहते हैं कि And their role from the एक्चुअली beginning जो इजरायली was है, to इजराइल जो है वो rely अमेरिका का not only on का, the का indigenous Palestinian population, फौजी but दस्ता है। also on the तो वो surrounding खुद भी Arab कहते हैं कि countries हम who अमेरिका have का been एयरक्राफ्ट हैं, revolutionary ferment जो कि हम in इधर उधर the घूमते रहते हैं। domination. हम How चारों it turns out इन्होंने was a bad सहूनियों ने investment. पूरे अरबी मुल्कों के It's ऊपर been अपना able कब्जा to किया हुआ है। defeat a determined people's movement. Now, there's another thing लेकिन we're going to talk जितना about भी Israel's पैसा सहूनियों में openness to लगाया गया है corruption. उसका बहुत The नुकसान ही है, large media क्योंकि आप देख लें कि इतना conglomeration कुछ in the होने के world बावजूद all ये support फलस्तीनियों को Zionism शिकस्त नहीं दे सके। and hostility to people's resistance. Now, media is the ultimate weapon. The most तो जो powerful सरमायाकार tool हैं to वो influence सहूनियत को people's जगह देते हैं, hearts and minds, वही और लोगों not के only ऊपर in the इनको US, but the French, जबरदस्ती German, फेंकते हैं and British उठाकर। media, overwhelmingly Zionist. All the imperialists use their power to shut down social ना media. सिर्फ अमेरिकी बल्कि Tens of फ्रेंच, thousands जर्मन, of ये सब Facebook and का जो YouTube मीडिया है वो newsletters जायोनिस्ट have है, सहूनी है अपने shut अंदर। down. और No जहां हो debate सका on इनसे Twitter possible. इनने एक्स को, And yet, फेसबुक we're को, all talking दीगर about सोशल मीडिया the को US population जहां पे भी फलस्तीनी is हिमायत नजर आ रही थी उसको totally बंद कर against दिया। Zionism. How is this possible? There have been लेकिन उसके thousands of बावजूद arrests, हमारी अवाम और दुनिया की अवाम deportations, सहूनियत के बिल्कुल not only पूरी in की the पूरी US, but खिलाफ throughout है। Europe. हजारों It's लोगों all को flawed. इनने कैद किया हुआ है This is और important लोगों को इधर to उधर बंद किया हुआ evaluate है, ना सिर्फ what's अमेरिका going में बल्कि on पूरे यूरोप में। in evaluating उसके the बावजूद limits लोग of US फलस्तीनियों के साथ imperialist खड़े हुए। power. It's being exposed. Not so powerful. The most vicious repression revealed their weakness rather than their strength, because they couldn't जो defeat इतनी सब this global किस्म की solidarity with the siege. It broke शदीद through every टेररिज्म, दहशत जो कि overwhelming अमेरिका और victory. सहूनियों The ने की, world stands with उसके them. बावजूद वो The फलस्तीनियों की आवाज को 36 रोक नहीं सके strikes और दुनिया जो shut है वो down. आज There's been resistance गाजा के साथ on the खड़ी है। front. चाहे They're शटडाउन eagerly हो रहे हैं, awaiting स्ट्राइक्स हो रहे हैं या फ्लोटिलास जा रही हैं, सब and तरफ we हम should देखते हैं कि not लोग फलस्तीनियों के साथ underestimate our खड़े हुए हैं। power. When we think of the work of the dock workers refusing हमें farm अपनी shipments, ताकत को कम and नहीं the समझना political चाहिए। strike in Italy हमें that देखना shut चाहिए down कि a जो strike लोग on butter issues बंदरगाहों and पे थे, जो austerity मजदूर बंदरगाहों पे थे, demands. वो स्ट्राइक पे It was चले गए और austerity, उन्होंने it कहा was कि a हम general इजराइल strike के and लिए shutdown हथियार Palestine. नहीं बांधकर That's किश्तियों में रखेंगे, internationalism at its और very सारे root. डॉक्स जो It's थे been यानी बंदरगाहें थी वो decades बंद since हो such गई। a thing happened. यही If we इंटरनेशनलिज्म है, consider इसी the को health हम बैनुल workers अक़वामियत कहते denouncing हैं। hospital bombings and the artists boycotting cultural exchanges, it इसी shows तरह how से जो solidarity सेहत can really के take on इलाके में material काम form. करने वाले होते हैं, उन्होंने भी बाहर आके खड़े हो गए और कहा कि ये जो अस्पतालों के ऊपर बॉम्बिंग हो रही है, ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो नौजवान थे वो अपनी जगह पे खड़े हो गए। तो ट्राइब्यूनल का क्या काम है? ट्राइब्यूनल का काम ये कि जो इन लोगों ने जराइम किए हैं ज़ायोनिज्म के और अमेरिकी साम्राज्यत के, उन सब को एक जगह लाया जाए ताकि सारी तहरीकों को पता हो कि कौन से जराइम हुए हैं। और इसी तरीके से जो गाजा को इन्होंने कोशिश किया है कि वो दुनिया से अलग हो जाए, गाजा को हम पूरी दुनिया में के बीचों बीच ले आए ताकि गाजा को ये अलग ना कर सकें और फलस्तीनियों की इज्जत और उनके वकार को हम बुलंद कर सकें।
covert regime change operations. And against चाहे कुछ भी वो many करें, aspects सैंक्शंस of this करें, apparatus of मारे पीटे, हर triangulation, तरह की कोशिश हमने कर ली है, internationalism provides the only लेकिन उसके coherent बावजूद ये alternative. So टूटते supporting जा the रहे हैं people's right और to हमारे exist पास सिर्फ एक ही calls ऑल्टरनेटिव है, for एक ही रास्ता है command कि and हम obligation बैनुल-अक़वामी of protective forces. सतह पर जाकर Seeking एक दूसरे के साथ information. जुड़ें, यकजहती करें, Thank you for your ताकि हम efforts इन लोगों को for being here with us today. अलग कर सकें और हम सब अपने लिए आज़ादी हासिल कर दें। आप सबका बहुत शुक्रिया। Thank you, Sarah, for your eye-opening presentation on the role of US in backing Zionist occupation. सारा, आपका Data, आंखें खोल देने वाली the role of प्रेजेंटेशन का बहुत बहुत international शुक्रिया। community in supporting the आपने Palestinian हकायक tribal और resistance. आदाद शुमार के साथ Obviously, बताया we कि are witnessing अमेरिका revival किस of तरह से internationalism इस जुल्म में बराबर के शरीक है। Palestinian struggle. जैसा Before आपने कहा we would कि like हम to thank फ़लस्तीनी and also जद्दोजहद respect को international आंखों देखा हाल देख रहे हैं। today we have 54 इससे पहले कि हम आगे international बढ़ें, हम organizations and the बैनुल-अक़वामी representatives अवामी of ट्राइब्यूनल की Palestinian तमाम again, हमायत we can करने endorse वाले and इदारों का underline शुक्रिया अदा the करते हैं। international आज की तारीख solidarity तक हमारे पास 54 बाज़ाब्ता इंडोर्समेंट आ You चुकी can है express your और organization ये बार बार support रोज़ बरोज़ ये फहरिस्त बढ़ रही है। attend the tribunal इंटरनेशनल सॉलिडारिटी by announcing your .org/tribunal support publicly and इंडोर्स पे encourage other जाकर organizations वेबसाइट पे to आप endorse. अपना इंडोर्समेंट कर Donating सकते हैं। to support the work. आपकी तंजीम की जानिब से इंडोर्समेंट का शुक्रिया। You will also get your name नवंबर में होने वाले ट्राइब्यूनल we में hope your, अपने नुमाइंदों को भेजकर thank you our अपनी MPs, हमायत का अवामी you तौर can पर start, ऐलान करके और दीगर तंजीमों को भी हमायत के लिए तरगीब देकर, now put a ट्राइब्यूनल के लिए काम के लिए video चंदा clip देकर from और our दीगर sources मुख्तलिफ on ज़राए से why we आप should इस support ट्राइब्यूनल the की मदद कर International सकते हैं। People's Tribunal जो for Palestine. तंजीमें ट्राइब्यूनल की हमायत करती हैं उनका नाम हमारी वेबसाइट पर शाया किया जाता है। हम अपने तमाम मौजूदा हमायती इदारों का शुक्रिया अदा करते हैं। आइए अब कुछ जो लोगों ने पैगाम भेजा है ट्राइब्यूनल की हमायत में वो सुनते हैं। ये पैगाम ग्लोबल समूद फुलकेला से एक पार्टिसिपेंट ने किया है जो गाज़ा की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं यहाँ से इंटरनेशनल अवामी ट्राइब्यूनल की हमायत का ऐलान करता हूँ और ये बहुत अहम है फ़लस्तीनी जद्दोजहद के साथ यकजहती के लिए। और हम अमेरिका के जंगी जराइम का भी आश्कार करेंगे। तो मैं आप सबको इनकरेज करूँगा कि इस इंटरनेशनल अवामी ट्राइब्यूनल का आप हिमायत करें और इसको इंडोर्स करें। बहुत शुक्रिया आप लोगों को। I am endorsing the International People's Tribunal as co-founder of Indian Dancers for Gaza's Children. और मैं इंटरनेशनल पीपल ट्राइब्यूनल को इंडोर्स करती हूँ। मैं एक अवामी कल्चरल ग्रुप की नुमाइंदा हूँ जो दुनिया में ख़ास तौर से बच्चों के साथ होने वाले मज़ालिम जो गज़ा में हो रहे हैं उसके लिए हम आर्टिस्ट लोग काम कर रहे हैं। मैं इस पैगाम के ज़रिए बताना चाहता हूँ कि आवाम की ताकत है जो कि जारी नस्लकशी को रोक सकती है और इसराइल जो आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है उसको भी हम उजागर करेंगे। दुनिया की आवाम इसमें अपना किरदार अदा कर सकती है और हम गज़ा के बच्चों के लिए इस ट्राइब्यूनल की हिमायत इसलिए भी करते हैं हम कि ख़ास तौर से जो गज़ा के बच्चे हैं वो इस जुल्म का बुरी तरह शिकार हैं। ये इंटरनेशनल पीपल्स ट्राइब्यूनल या अवामी ट्राइब्यूनल जो है इन चीज़ों को ख़ास तौर से नस्ल कशी को दुनिया के सामने उजागर करने में मदद करेगा। हमें यकीन है कि और दीगर इदारे भी इस इंटरनेशनल अवामी ट्राइब्यूनल को इंडोर्स करेंगे।
मैं केएमपी का चेयरमैन हूँ, प्रमोस फिलीपींस से। मैं इंटरनेशनल हम केएमपी जो किसानों की फिलीपींस में तंजीम है आलमी अवामी ट्राइब्यूनल की हिमायत करते हैं। ये फ़लस्तीन में जो नस्लकशी हो रही है इसको पूरन रुकना चाहिए, और हम जब आवाम इकट्ठा होती है उसको कभी शिकस्त नहीं दिया जा सकता। हम मगरबी साम्राज्य के खिलाफ इकट्ठे हैं जो कि फ़लस्तीनी सरजमीन को कब्जा किए बैठी है, और हम सपोर्ट करते हैं आलमी अवामी ट्राइब्यूनल की जो बार्सिलोना में होने वाला है। फ़लस्तीन आज़ाद होगा, फ़लस्तीन आज़ाद होगा। Hi, I'm Eliza. दरिया से समंदर तक फ़लस्तीन आज़ाद होगा। Yes, wonderful. We have a lot of videos. Thank you to all our endorsers, and please बहुत consider ज़बरदस्त, endorsing हमारे our पास और भी organization वीडियोज़ हैं। as well. बहुत Several शुक्रिया years जिन ago, जिन ने we are इंडोर्स no किया है, longer हमारे ट्राइब्यूनल opposers की हिमायत of की है। International People's Tribunal, because Cyprus is not only a neighboring country to Palestine, but the destiny of Cypriot peoples यूनियन ऑफ साइप्रस themselves की are जानिब victim of the से भी occupation हिमायत का itself, ऐलान and हुआ both है, colonization is closely linked जो with कि the खुद जो है Palestinian वो the continuity of साम्राज्यत presence का and शिकार dominance है, of the Turkish यूनियन ऑफ occupation of Cyprus साइप्रस। also guarantees the existence of और British ये military bases टर्किश in Cyprus ऑक्यूपेशन for साइप्रस में जो stability है उसका in the शिकार है struggle वहाँ के taking लोग। place in Palestine. We know that the liberation struggles, जो whether in गाजा में Cyprus, जेनोसाइड हो Palestine, रहा है उसकी हेल्प भी Philippines, कर or रहे हैं। Puerto Rico, are interconnected. People's struggles are interconnected. So, साइप्रस, right फिलिस्तीन, now, पोर्टरिका, our इन audience मुल्कों में जो is here on the जरा political nature मजालिम है, ये of a इंटरकनेक्टेड। People's Tribunal अब हम and the अपने role it आखिरी played मुकर्रर in की supporting तरफ grassroots जाएंगे, movement जो building अवामी तहरीकों solidarity की with यकजहती national की liberation अहमियत पर struggles. बात करेंगे, We will now hear from और वो है Suzanne Adelli. सुजैन एडेली। हम Suzanne is उनको the president of the खुश National आमदीद Lawyers Guild, कहते हैं। the सुजैन largest एडेली freelance नेशनल bar लॉयर्स association गिल्ड in की the सदर US, है, and a जो member अमेरिका of की the कदीम तरीन Bureau और सबसे of the तरक्की पसीन International वकला की Association तंजीम of है। Democratic Lawyers, वो a global organization of इंटरनेशनल 50 एसोसिएशन ऑफ associations डेमोक्रेटिक in लायर्स 50 की countries बैरो and मेंबर भी regions, हैं, with जो कि 50 responsibilities से ज्यादा to ममालिक और circulate खुत्तों the में United तरक्की Nations. पसंद वकला की She आलमी is, तंजीम है, along और with अक़वाम grassroots मुत्तहदा में भी organization, मुशादी a हैसियत very रखती है। versatile rights advocate. सूजन एक She तवील is अरसे on the से steering committee of अवामी सतह की the तंजीम US साजी और Palestinian आलमी Community मजदूर हकूक़ के Network लिए and a सरगर्म है। वो co-convener यूएस and फ़लस्तीन chair of the कम्युनिटी Labor नेटवर्क for की स्टीयरिंग कमेटी Palestine की भी National मेंबर हैं, Network in the और US. लेबर फॉर Yes, Suzanne, the floor फ़लस्तीन is नेशनल yours. नेटवर्क की Thank you. भी को कन्वीनर है। Okay. सुजैन, फ्लोर आपके लिए है। बहुत शुक्रिया। Um, okay, I'm gonna try to be brief. I just मैं कोशिश wanna करूंगी to कि मैं मुख्तसर do बात this करूं। as meaningfully as I can मैं चाहती हूं about कि मैं these tribunals, my कोई understanding बामानी बात of the करूं जितना role मैं they कर सकूं, play ख़ास तौर से in our political अवामी struggles, ट्राइब्यूनल के बारे में जो and मेरी समझ my है, experience और participating सियासी in जद्दोजहद के organizing हवाले से, tribunals as और well मेरा as अपना acting तजुर्बा as a juror in ट्राइब्यूनल several के tribunals. ऑर्गेनाइज करने में, जो मैं दीगर These और ट्राइब्यूनल में tribunals मैं are शरीक रही, उस fundamentally हवाले से बात करना used चाहूँगी। as or often अवामी described ट्राइब्यूनल जो है as वो non-governmental समझा जाता है कि वो society-based गैर सरकारी activities होती, in अवामी the सतह पर, overall people's building mechanism ग्रास for रूट justice सतह पर, used by movements बतौर in मजमूई creating ये mechanisms अवामी for इंसाफ के लिए अवामी those जद्दोजहद का hold नाम है। voices जब of लीगल oppression मैकेनिज्म नाकाम हो जाए,
in most cases, जब people इस्तेहसाल can करने वाले, actually जुल्म करने वाली use ताकत local legal जो है mechanisms उनके आगे in कोई बंद ना capable बांधे। of enacting justice, even when they do जब अवामी और मुल्क hear की the issues, कानूनी because सिस्टम these जो है forums इस are जुल्म के often निज़ाम hosted को by ख़त्म those करने who में are नाकाम हो the जाए, agendas of the क्योंकि ruling class, ये आलमी of और the अवामी imperialist core, अदालती फोरम जो है वो करप्शन का शिकार है और वो आलमी साम्राज्य के ताबे है। our political अवामी platforms, अदालतें as well as सियासी digital platforms, even एक though they're not प्लेटफॉर्म formally होता है understood to be और so. साथ साथ They एक function independently एक from अदालती फोरम भी होता है, institutions, गो कि वो and we use these उस models तरह to seek ऑफिशियली justice while अदालती नहीं होता। simultaneously ये continuing तरीकाकार, to intervene इंसाफ के in ये formal legal तरीकाकार mechanisms मुस्तकिल to जारी find है, justice until जहां we आम can अदालतें find नाकाम हो जाती हैं, alternatives. जहां पे इंसाफ की डिमांड किया जाता है, और People's ये tribunals इंसाफ के लिए मुतबादिल can रास्ते be हैं। very sort of अवामी significant in अदालतें supporting the aims बहुत of the अहम हो सकता collaboration है tables that we're a part of. These platforms seek to आज़ादी की hold space जद्दोजहद for को collaboration मदद since करने के this लिए expression is ये available. लोगों को Very often, और ममालिक को when speaking about अकाउंटेबल बनाता है, tribunals, जवाबदेह करता है the word कि वो non-binding हक के लिए is खड़े हों। used to sort of describe its an ये independent nature. नॉन I बाइंडिंग जो think है, sometimes इसका मतलब है ये people आज़ाद है, इसको describe मानना people's नहीं tribunals मानना as इस पे कोई कदगन या non-binding, but ज़बरदस्ती it नहीं sort होती, of लेकिन does इसके बावजूद entail an ये injustice, right? It's not पीपल्स exactly the way ट्राइब्यूनल of जो है perception, इसको मानना सबके लिए ज़रूरी because नहीं है, लेकिन evidence presented in ये these tribunals पीपल्स ट्राइब्यूनल can be and have इंसाफ को been दिलाने में बहुत referenced अहम in किरदार अदा formal करती हैं। proceedings like UN mechanisms ये and पीपल्स international ट्राइब्यूनल courts जो है, इनके जो that can कार्रवाइयाँ then हैं lead to फॉर्मल binding कोर्ट में verdicts और आलमी अदालती or कोर्ट में can इसको रेफरेंस के तौर पे भी subscribe पेश to किया जाता है और strategy जा and सकता है। policy in local and state और ये ऑल्सो governments मदद कर सकता है for ये a change लोगों का in जहन बदलने में, um, हुकूमतों के UN इक़दामात के बदलने resolutions, में, etc. ताकि वो अपने रवैयों And में, अपने फैसले में people तब्दीली use the लाएं। term non-binding to refer to people's tribunals और because they're comparing them to और formal अक्सर courts लोग which इस्तेमाल करते are हैं कि considered as अवामी binding. अदालती ट्राइब्यूनल जो है, Why इस is it पे helpful that इसको formal किसी को courts मानना are नहीं binding मानना ज़रूरी when नहीं their है। rulings are तो ये ultimately क्यों often discriminatory मददगार है, or very unhelpful? जबकि They're आम often looking at अदालतें certain जो aspects है of वो बाइंडिंग justice होती है, through very अदालतों के narrow फैसले मानना लाजमी sort होता है, जबकि अवामी अदालत का मानना rights, लाजमी नहीं sort होता। of rights frameworks. And when हमें these इसको formal courts हुकूक की often नज़र से और हुकूक के ढांचे में act इसको देखना little पड़ेगा, evidence and क्योंकि testimonies of ये benefits. आम अदालतें And what जो does it मानी matter that जाती these हैं, courts are binding वो in the first place? अक्सर जो जुल्म का Especially शिकार है since उनकी these कहानी को so-called नहीं binding सुनते हैं। courts refuse to hear the call for justice. खास तौर से इन अदालतों में Like in the case, अगर for इंसाफ की example, बात हो the तो injustices that have उसको been नहीं सुना जाता, और इसकी installed in मिसाल custody in people for decades. जो नाइंसाफियां Tribunals फ़लस्तीन में help हो रही हैं, build इसको public कहाँ सुना awareness गया to किसी अदालत combat में। silent ये struggles अवामी ट्राइब्यूनल and build ये public अवाम में understanding of these शऊर पैदा struggles करने के लिए and बहुत promote अहम होता है, investment in और seeking जो justice. निज़ाम है जुल्म का, They इस्तेहसाल offer का, a narrative उसको of लोगों people's में struggles that आश्कार करने में counter मददगार साबित imperialist होता and है। racist narratives ये and upheld बताता a है कि very किस wide तरह से sense आलमी of साम्राज्य के urgency. आगे अवामी They जद्दोजहद empower उठ खड़ी हुई है, victims. They और ये provide जो a बगावत है platform ये अपने हकूक के for लिए और अपनी आज़ादी के survivors, लिए है। for families of survivors, for affected communities to present their ये experiences. जो मर गए हैं At उनके times फैमिलीज when के लिए, no other जो बच गए forums हैं, जो are जख्मी हैं, willing to उनके hear these लवाकिन के लिए, testimonies, to hear these और stories. उनके लिए उनकी आवाज़ बनने They के help लिए, to build solidarity. चूंकि कोई और They दीगर act as फोरम platforms उनकी to आवाज़ नहीं connect सुनता और movements उनकी हमदर्दी का इजहार नहीं to करता। the wider world, to share ये information, प्लेटफॉर्म to इसलिए भी share है कि strategies, ये इस तरह to के connect दूसरे इदारों के between साथ कनेक्ट करे और national राब्ता बहारी liberation करे। movements एक and the मुनज़्ज़म mandates of राब्ते the के tribunals नतीजे and में एक bring बड़ी them together. मुहिम के लिए They provide moral ये and political clarity ट्राइब्यूनल अहम that किरदार operates अदा करता outside है। of official
ये जो है वो अखलाकी और सियासी क्लैरिटी देता है। इससे आपको पता चलता है कि हक और सच क्या है, और ये एक आज़ाद फ्रेमवर्क है। इसमें कोई सरमायादार से या साम्राज्य से डिक्टेशन नहीं ली जाती। इंसाफ का सवाल और इंसाफ का जवाब यहाँ मिलता है, जो कि आम अदालतों में इस तरह का काम नहीं होता। ये ट्राइब्यूनल जो है तारीख को ठीक करने के लिए भी बहुत जरूरी है, ताकि आने वाले दिनों में अगर कोई इस्तेसाली तबका कोई इसी तरह का अमल दोबारा करे तो इसको रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है दूसरे फोरम्स में भी। जद्दोजहद के लिए जो सपोर्ट है, जो आने वाले दिनों में भी है, उसके लिए भी रास्ता हमवार करता है। पीपल ट्राइब्यूनल अक्सर जो है बड़ी सियासी एक्टिविज्म और सियासी जद्दोजहद के लिए भी रास्ते जो है वो खोलता है। पहला रिकॉर्डेड पीपल्स ट्राइब्यूनल जो हुआ था वो 1966 में हुआ था और 1967 में हुआ था, जो 18 मुल्कों से हुआ था। 30 गवाहान पेश किए गए थे उसमें, जिसमें वियतनाम वॉर में जो जंगी जराइम हुए थे उसको उजागर किया गया था। और इसमें बगैर खौफ और बगैर किसी के हिमायत के सिर्फ इंसाफ और अमन फराहम करने के हवाले से ये दो पीपल्स ट्राइब्यूनल हुए थे। 66 और 67 के बाद बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं इस तरह का पीपल्स ट्राइब्यूनल हुआ दुनिया भर में आलमी तौर पे और बहुत सारे मुल्कों में भी। रसल ट्राइब्यूनल जो दो हुआ वियतनाम पर, उसके फौरन बाद लोकल ट्राइब्यूनल भी हुए। डिट्रॉइट में 1967 में हुआ। सियाफाम अवाम को डिट्रॉइट में जो उन पे जुल्म हुआ, उनको मारा गया, उसके खिलाफ मुकामी तौर पे डिट्रॉइट में ट्राइब्यूनल हुआ इसी तरह। और किस तरह से नस्ली बुनियादों के ऊपर जुल्म होता है, इस्तेसाल होता है, खास तौर से कालों के साथ अमेरिका में। उस हवाले से पुलिस ने लोगों को मारा, उनको अरेस्ट किया, उस हवाले से डिट्रॉइट में ट्राइब्यूनल हुआ। ये ट्राइब्यूनल बहुत अहमियत का हामिल है बहुत सारी वजूहात की बुनियाद पे। एक दफा 1979 कमीशन हुआ यूएन का सियासी जुल्म के खिलाफ और कैदियों के खिलाफ जो अमेरिका में है उनके खिलाफ भी ट्राइब्यूनल हुआ। ये दोनों ट्राइब्यूनल ने नस्ली इम्तियाज जो होता है, नस्ली तशद्दुद जो खास तौर से अमेरिका में होता है, उसके खिलाफ एक अवामी बयानिया बनाने में कामयाब हुआ ये ट्राइब्यूनल। और अमेरिका को जवाबदेह बनाया गया इस वायलेंस के खिलाफ जो कालों के खिलाफ, सियाफाम के खिलाफ अमेरिका में होता है। ये रिपोर्ट, इसकी एक रिपोर्ट बनी जो कि अक़वाम मुत्तहिदा में गई और अमेरिका के खिलाफ उनके जो नस्ल परस्ताना इक़दाम है उसके खिलाफ एक सबूत के तौर पे पेश हुआ। 2021 में भी एक ट्राइब्यूनल हुआ।
to give a forum to families who had lost loved ones to racist police violence in the United States, which is still very much उन्नीस सौ an epidemic. 2021 में भी इस तरह का एक And still ट्राइब्यूनल हुआ very much जिसमें not नस्ल प्रस्ताना अमरीकी इकदामात an के issue खिलाफ that has been able to be जद्दोजहद हुई with justice for और families, लोगों ने उसमें बात की और for the victims इसमें जिनके specifically साथ who they impact. नस्ल प्रस्ताना कार्रवाई हो रही थी उनकी And फैमिली की हिमायत की गई, उनकी फैमिली without बाहर आई connection like और उनकी this, फैमिली के साथ the यकजहती का इजहार experiences किया of गया। the families in the communities in which इस these तरह के violations कमीशन took के बगैर place may not or could not have been फैमिलीज heard. जो लाभार्थिन Similarly, हैं इसके अशराफ I have been उनकी not आवाज सुनी informed नहीं जाती। for many इसी years. तरह I've been following many of the tribunals that have been मैं set up पिछले as कई part of the सालों से International People's Tribunal on the Philippines, दीगर cases that I've been ट्राइब्यूनल part of. को भी फॉलो And कर in रहा हूँ recent कर years, रही हूँ। I've फिलीपीन में भी been part of इंटरनेशनल the two ट्राइब्यूनल such हुआ, मैं भी tribunals उसका as हिस्सा a रही juror, पिछले but दिनों। also दो इसी looking तरह at के systems of oppression in the ट्राइब्यूनल हुए जिसमें Philippines, मैं एक जज की तरह जज के तौर पे शामिल हुई, the liberation struggle in the खास करके जो Philippines, फिलीपींस में हुआ, and state oppression against ताकि Filipinos जो as a फिलीपीन whole. में आज़ादी की And जद्दोजहद है particularly और जो रियासत जो tribunal फिलीपींस की that आवाम पे was a मुजालिम कर part रही है of उसके in खिलाफ Brussels of last year, for me was incredibly मैं एक और and it पिछले was साल एक ट्राइब्यूनल का eye-opening just in the हिस्सा fact थी that जो ब्राजील में हुआ। there was a tremendous ये amount of मेरे लिए evidence that आंख was खोलने के presented of बराबर crimes था, against humanity that were taking किस place तरह in से terms of the लोग इन ट्राइब्यूनल में जो Philippine शवाहिद पेश Army करते in हैं conjunction ये with the आंखें US. खोल देने वाली There was होती a हैं। whole क्या system किस तरह to से really फिलीपीन help आर्मी sort of जो है eliminate वो फिलीपीन के um, लोगों पे मुजालिम कर रही है, by ये सही looking में at जो sort of है the वो evidence and its entirety, by hearing the stories समझने में of the मदद victims' करता है कि stories, by किस तरह hearing से the रियासत जो है narratives, by reading the आवाम reports को of या these हक के tribunals, लिए जद्दोजहद इंसाफ के and लिए putting जद्दोजहद करने together वालों का खात्मा कर in देती है। Brussels, it really sort of helped to create a great deal of political clarity for me in terms of what ये the ब्रसेल्स struggle in का the जो Philippines ट्राइब्यूनल था really is about, मेरे लिए ये and बहुत the very sort of सियासी systematic way समझ in के लिए which the बहुत जरूरी था counterinsurgency war is sort of being used to crush और that किस तरह oppression. बाकायदा That kind of clarity, जो है political clarity, जो came as a लोग अपने result हक of के लिए the लड़ रहे हैं उनके Arduous खिलाफ किस तरह Tribunal से that never बाकायदा really happened in सिस्टमेटिकली any other sort of उनको place in खत्म West करने के Asia. लिए रियासतें That कार्रवाई doesn't mean that करती we हैं, don't want इसकी to be सियासत able to मुझे bring समझ these issues to formal proceedings, both international and local. We still need to fight in these forums. ये Because पीपुल्स these ट्राइब्यूनल people's करने का struggles हमारा ये are मकसद नहीं है very कि हम powerful, इन वाकयात को फॉर्मल and अदालतों helping us में to या build the kind of इंटरनेशनल political अदालतों clarity में that नहीं we लाना need चाहते, to take these fights for लेकिन justice as इस far तरह as we के need to करने go. से इक़दामात से I was also एक recently इंसाफ के लिए जद्दोजहद part of और a local tribunal in the United इंसाफ के States लिए लड़ाई that was the की first सियासी tribunal वजूहात समझ आती हैं। that was held to hear about the grievances or the struggles of agricultural workers in North America and the US and Canada. And it struck me that अमेरिका में एक और even ट्राइब्यूनल if हुआ a जो कि farmer in the जरी United वर्कर States or Canada काश्तकारी में is काम करने given वाले वर्कर्स a के forum to आवाज talk को सुनने about के लिए था। wage theft, एक or to talk about खेत मजदूर health and अमेरिका safety on the या job, कनाडा में or to किस talk तरह से about उसको what it's कम like तनख्वाहें दी जाती to हैं, work under उसको जो auspauses, काम में जो हेल्थ it के still मसाइल could है, never सेहत के match मसाइल हैं, what we वो were किस able तरह to से sort होता of है। achieve in a public binational forum, where we were ये able to hear कतई the ऐसा नहीं हुआ entirety of the कि जो story हम of करना these चाहते farm थे हम workers, कर right? Which कर didn't पाए, begin लेकिन when they हम took a job इस on मसले a farm in the United States को or on हम a farm in Canada. गीर It तौर पे began समझ पाए when कि imperialist wars अमेरिका came और to their कनाडा में country किसान and किस displaced तरह them से from their lands, जुल्म का शिकार and है। forced them to have to migrate and be part of an exploitative food chain
in which they had sort of no alternatives और ये to समझने में मदद exploit हुआ the कि किस तरह से deported. दीगर मुल्कों से लोग अमेरिका और And कनाडा again, आके having एज अ that's माइग्रेंट what काम really करते helps हैं और अपने us मुल्क and से अपनी helps जगह the छोड़ते public हैं who और hear यहाँ the उनके साथ क्या testimonies, मजालिम होते हैं। who read the reports, to sort of understand sort of ये जो शवाहिद थे, entire ये narrative, कहानियां थी right? जो And मजालिम की gain थी, sort of लोगों ने सुना clarity as to और what लोगों these को different systems जिनको of पता नहीं oppression, था उनको पता capitalist, चला। ये एक imperialist ऐसा systems of नैरेटिव oppression that ये are driving this कि exploitation, मुख्तलिफ as तरह के opposed कौन to से just going मजालिम through हो रहे हैं, political इस्तेहसाल हो रहा है। court ये and जो through a उनका very sort of like narrow इंसाफ version of what was की being नफी हो रही है symbolized जो उनके by साथ, Walker on that ये particular day. इस We have to टेस्टिमोनी have से, the कहानियों clarity से, around शवाहिद से, the लोगों की larger बातों picture, से the ये लोगों systematic तक बात systems of पहुंचा। ये oppression बयानिया that फैला। led to whatever labor incident happened, in order for us to be able to sort of address those systems of oppression through struggle, through calls for justice, जुल्म through का जो ये organizing बाकायदा specifically. निज़ाम है उसको समझना I जरूरी है। also just wanted to mention और for इसके लिए those that हम was mentioned इंसाफ के लिए before, जद्दोजहद a करते हैं और couple of तालीमी years सेशन part करते हैं और of शऊर बढ़ाते हैं। organizing something मैं called the खत्म करने से International पहले Youth Tribunal ये Against बताना चाहूंगी, Imperialism, which looked at the use of economic coercive measures such as sanctions मैं on एक और हिस्से का countries बैठी थी, एक और ट्राइब्यूनल का as हिस्सा a थी tool of जो imperialist आलमी अवामी domination. ट्राइब्यूनल And अमेरिका in that की tribunal, साम्राज्यत we के held खिलाफ था, मैं उसका 16 भी hearings हिस्सा थी। of the use of these measures against countries like Iraq, Syria, Venezuela, Cuba, Haiti, Libya, and Gaza. And two of our expert witnesses अमेरिका from किस तरह Iraq were इराक, murdered सीरिया, by वेनेजुएला Zionists और दीगर मुल्कों in में the last अपनी tribunal. साम्राज्यत को That कायम करने के लिए also जो was इक़दाम an उठा रहा था, उस experience चीजों को देखना था for उसमें। me and for others in that we were able to use the tribunal to frame the question of what our economic and coercive मेरे लिए systems ये are, बहुत to frame सीखने it का अमल था, around समझने का अमल था the question of और बहुत imperialism अहम and था। not just the question of rights and human rights. And इस ट्राइब्यूनल से मुझे findings समझ आया were कि eventually ये used हुकूक की during का the सवाल नहीं था, UN High Commissioner on Sanctions. ये इंसाफ का सवाल And से we बढ़कर continue ये those सवाल इस बात findings का था कि of this अमेरिकी 24 साम्राज्य किस तरह tribunal तसल्लुत कायम करता है। for सवाल ये होना चाहिए, political मुझे ये education, समझ आया। as well as to work alongside और many इस सब के communities लिए that were part सियासी of this तालीम around बहुत the जरूरी world, है। to इस continue to spread the voice of इस शऊर के लिए reparations तहरीकों everywhere के from साथ Venezuela जुड़ना और काम करना जरूरी है, to the African continent, क्योंकि etc. साम्राज्य किस तरह से Now, ब्लॉकेट के नतीजे I में just want to end by जो saying पाबंदियां that लगाता है वेनेजुएला it's और really दीगर important that we मुल्कों में, continue to वो use किस तरह से अपना this तसल्लुत model इन पाबंदियों through ब्लॉकेट political से यकीनी education, to बनाता है। push policy change, to ignite calls for justice, to build solidarity with liberation ये struggles. मॉडल जो है ट्राइब्यूनल का But we also need to सियासी use शऊर, outputs सियासी of this तालीम के model to साथ साथ continue to intervene इंसाफ के लिए in the form of rights. We can't धक्का देने का भी abandon एक those तरीका है। forums completely to the imperialist and capitalist agendas. We हम have to continue हम in साम्राज्य these अदालतें spaces और to साम्राज्य carry the voices आलमी अदालतें या कौमी from our अदालतें उसका ख़त्म revolutionaries, नहीं to कर carry the सकते, voices of लेकिन liberation struggles, लोगों to की demand आवाज़ों को जो that इन ट्राइब्यूनल से these आती है, जो हक और सच की आती है आवाज़ है, act जो in a डिमांड way करती है, that मुतालबा protects करती है justice and protects कि people. And we ये have to continue to साम्राज्य की advocate that we should इस्तेहसाल build ख़त्म हो, उनको systems of लोगों को justice that we तहफ़्फ़ुज़ want, मिले, लोग आज़ादी से ज़िंदगी गुजार that we सके। want and that our हम struggles चाहते हैं need and कि demand. So thank you very कि much. हमारी जद्दोजहद उसको वो सपोर्ट मिले जो वो डिजर्व करते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सुजैन, आपके मालूमाती प्रेजेंटेशन का, ख़ास तौर से जो ट्राइब्यूनल क्या किरदार अदा कर सकती है कौमी आज़ादी की जद्दोजहद में, और ख़ास तौर से अदर ट्राइब्यूनल की मिसालें देने पे मैं अपने तमाम स्पीकर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने आज बात की, जो
तारीख, फलस्तीनी जद्दोजहद की तारीख से लेकर अमेरिका का जो रोल है और ज़ायनिस्ट ऑक्यूपेशन में और फ़लस्तीनी अवाम के लिए जो तहरीकों की जद्दोजहद है, और जो आखिर में हमने बात सुना कि ट्राइब्यूनल का क्या रोल है, हम उन तमाम स्पीकर का बहुत शुक्रिया अदा कर सकते। आगे जाने से पहले मैं एक राउंड और वीडियोस का यकजहती का चलाना चाहूँगा। I'm Eliza. I'm from NAILS. It stands for National and Anti-Imperialist Liberation and Solidarity. We are an anti-imperialist organization dedicated to supporting मैं एक इदारा है आलमी साम्राज्य और नेशनल लिबरेशन का, उसके साथ हूँ। मैं यकजहती का इज़हार करता हूँ और मैं कहता हूँ कि लोगों को हक है कि वो कौमी आज़ादी की जद्दोजहद लड़े, और हम इंटरनेशनल पीपल्स ट्राइब्यूनल को इंडोर्स करते हैं। हज़ारों की तादाद में आवाम को वहाँ से डिस्प्लेस किया गया है, उनको मारा गया है, ख़ास तौर से औरतों और बच्चों को। ये सीज़ फायर जो है लोगों को इंसाफ फराहम नहीं करेगा और फ़लस्तीनियों के और वेस्ट बैंक में लोगों को मुस्तकिल हरासा किया जा रहा है और उनको हटाने की कार्रवाइयाँ जारी है। 2 साल से जो इंतहाई दर्जे का दखलकशी हो रहा है फ़लस्तीन में, और उसके ख़िलाफ़ जो लोग खड़े हुए हैं और ज़ायनिज़्म ने जो जराइम किए हैं, ICC में भी उसके ख़िलाफ़ फैसला हुआ है और इंसाफ की बात की है, लेकिन उसका अमल नहीं हो सका उस पर। ये अवामी ट्राइब्यूनल दुनिया की बहुत सारी तंजीमों ने इसको ये अवामी ट्राइब्यूनल कर रही है, जिसमें जंगी जराइम को उजागर किया जाएगा इसराइल और अमेरिका के। हम और दीगर इदारों को भी चाहेंगे कि वो इंसाफ और आज़ादी की जद्दोजहद के हवाले से होने वाले इस अवामी या आलमी अवामी ट्राइब्यूनल को इंडोर्स करें। मैं फिनलैंड के पार्लियामेंट के बाहर खड़ी हूँ और ग्लोबल फेमिनिस्ट ग्रुप का एक हिस्सा हूँ। मैं बहुत सख्ती से कहूँगी कि इंटरनेशनल पीपल्स ट्राइब्यूनल की सब लोग हिमायत करें। गाज़ा के ऊपर जो हो रहा है, ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक बहुत मजबूत अंदाज में अपने अपनी हुकूमतों को, ख़ास तौर से मगरबी हुकूमतों को ये बावर कराए और ये दबाव डाले कि सीज़ फायर जो है वो बहुत ज़रूरी है, गाज़ा को फ्री करना बहुत ज़रूरी है और इसराइल के साथ जो है वो हर तरह का तिजारत ख़त्म करे सज़ा के तौर पे, और ताकि ये जेनोसाइड ख़त्म हो। ट्राइब्यूनल में हिस्सा लें और इसमें इसको ज्वाइन करें। और यहाँ एक और है जो कि ट्रिब्यूनल की हिमायत में बात करेंगे। मैं सराहनीय हूँ फिनलैंड से। ये बहुत ज़रूरी है कि इन आलमी कवानीन को अपहोल्ड किया जाए और जो ये जराइम कर रहे हैं उनको कटहरे पे लाया जाए, जो कि इसके ज़िम्मेदार हैं इस नस्लकशी के, और ट्राइब्यूनल को प्लीज़ सपोर्ट करें। ये ज़िंदगी के लिए है। ये 2025 का इंटरनेशनल पीपल ट्राइब्यूनल की जो फ़लस्तीन के हवाले से इसकी हिमायत करे, जो इंटरनेशनल पीस एंड स्ट्रगल कर रही है और इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स कर रही है। इंटरनेशनल पीपल्स फोरम के जो कि एक मजहबी, बहुत सारे मजहबी पीसफुल लाइफ्स को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं एक फेस बेस्ड इदारे से हूँ और मैं ये कहता हूँ
कि ये जो वार क्राइम हो रहा है, जंगी जराइम हो रहे हैं, ये जो मारे जा रहे हैं लोग, ये इसके लिए जो ट्राइब्यूनल हो रहा है ये जस्ट है, और बल्कि इसका करना बहुत जरूरी है। वहाँ पे इंसानी फलाह, ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट को भी नजरअंदाज किया जा रहा है। इंटरनेशनल पीपल्स ट्राइब्यूनल एक अलामती अमल है। जो लोग जद्दोजहद करते हैं और ख़ास तौर से ज़ायनिस्ट इसराइल के ख़िलाफ़ हैं। इसलिए हम और दीगर इदारों से और आलमी तौर पे आवाम से कहेंगे कि वो इंटरनेशनल पीपल्स ट्राइब्यूनल जो फ़लस्तीन के हवाले से हो रहा है, जो स्पेन बार्सिलोना में नवंबर में हो रहा है, आप लोग भी हिमायत करें इसकी। It is amazing to see all the endorsers from all around the world. Thank you again for all of them. And बहुत अच्छा लगा इतने सारे लोगों का एंडोर्समेंट का पैगाम देकर। by visiting हम दोबारा हर इस फोरम में जो लोग अभी हैं वेबिनार में और दीगर आपके जो सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग इसको इंडोर्स करें। अब हम जाएंगे सवाल जवाब के सेशन में, और आप क्वेश्चन एंड आंसर का जो चैट बॉक्स है उसमें क्लिक करके आप अपना सवाल लिख सकते हैं। आप चाहे तो जिस स्पीकर से सवाल हो आप उसका नाम लिख के सवाल कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे भी सवाल किया जा सकता है। मैं उसको जो सोशल मीडिया में मैं पहला सवाल करता हूँ। Other than donating to the people of सारा हमसी Palestine ने and सवाल other किया है। organizations that support this cause, what else can we do to mobilize for Palestine? Love and solidarity from Manila, Philippines. हम क्या कर सकते हैं उनके लिए मदद करने के अलावा, जो हम डोनेट करें माली तौर पे और आवाज बुलंद करें, हम उसके अलावा और क्या कर सकते हैं फलस्तीनी लोगों के लिए? ये सवाल मेरे ख्याल है सबसे कॉमन सवाल है। कौन इसका जवाब देना चाहेगा? Yes. Sarah? I don't know if I should be the one to start this सारा discussion, इसका जवाब देना। but the donations can be important, so I don't want to say not, but really डोनेशन बहुत जरूरी है, most important, मैं ये नहीं कहूंगी कि ये in ना my दो, opinion, is the visible लेकिन support सबसे जरूरी है the कि demonstrations, the ऐसा encampments, सपोर्ट करे जो नजर आए। blockades, the people's मुजाहरा, actions, the strikes, ब्लॉकेड, the रास्ता बंद करना, actions that अवामी became एक्शन, threatening स्ट्राइक, everyone, that became वो a जो threat to एक्शन all सड़क पे हो, different governments that were complicit totally in this war on Palestine. To sometimes it was just to make phony statements. जो ये For फलस्तीन example, में there was जंग a हो रही है इसको flotilla, बताने के Israeli लिए flotilla, सिर्फ 50 डोनेशन days या ago, जबानी बात and नहीं, then एक्शन representatives और of आपका unions and people's किरदार, movements आपका on that. मज़ाहमत And based on बहुत huge जरूरी है। pressure in Italy and Spain, they grandly announced they were going to send a couple of their Navy ये boats. इसी वजह से But इटली और it was स्पेन just में for public relations. It wasn't really to के support the हुकूमत ने flotilla. ऐलान It किया was कि to वो encourage अपने it to turn back. नेवी को भेजेंगे And इसके then लिए। to pick up the pieces, to stand by पहले आ while रही थी, all of these hundreds of people उसको were पूछो। arrested and the material aid confiscated. But it was enormously important because जब the फ्लेटेला के लोग strike गए, ended लोग genocide ना that सिर्फ took place उनका in Italy. उनको गिरफ्तार कर लिया, The बल्कि Genoa उनके जो सामान था port उसको भी अपने workers कब्जे में said लिया we सहूनी have one इसराइलियों person ने। on one boat, and if they're stopped, we will all go out on strike. That was a political strike, such as we haven't seen before. So that तो presented a real एक challenge. बोट वाले ने The fact कहा that that कि was happening now in Germany, अगर it's not illegal to इस बोट को leave रोका गया तो हम Palestine, स्ट्राइक and कर yet देंगे। that law became just a shambles when people जर्मनी started में again and again and ये again
अजीब कानून है कि अगर फलस्तीन के साथ है तो वो गैर कानूनी है, लेकिन उसके बावजूद बार बार लोग सड़क पे आए और प्रेस और उस पे एक प्रेशर बिल्ड हुआ। इसी तरह फ्रांस में हुआ, इसी तरह ब्रिटेन में हुआ कि अगर आप फलस्तीन की हिमायत के लिए बाहर आएंगे तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और हजारों की तादाद में उन लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन उसके बावजूद लोग सड़कों पे आए और फलस्तीन के साथ होने वाले, फलस्तीनी अवाम के साथ होने वाली नाइंसाफी को जो है वो उजागर किया, और नेतन्याहू को ये बताया कि अवाम उसके खिलाफ है। ये एक्शन बहुत अहम है और एक चैलेंज है, और ये फलस्तीनी जद्दोजहद करने वाले लोगों को ये एक होप देती है और उनको उनका हौसला बढ़ाती है, और मेरे ख्याल से ये इससे प्रेशर भी बिल्ड होता है और इसकी हिमायत भी होती है, और ये यकजहती का असल तरीका है। मैं कहूँगी जो कुछ हम कर सकते हैं हमें वो करना चाहिए, और एक्शन सबसे जरूरी है। While Susan, शुक्रिया। would you like to also Yeah. comment on the? Yeah. Can I? Yeah, well, please. Okay. Well, in fact, right now, even if we are speaking about ceasefire, but what असल में we have to be sure about जो हम is बात कर रहे not the सीज़फायर end है of अभी, war, because Palestine is always under occupation, लेकिन अभी ये जंग and खत्म be नहीं well हुई, prepared. And we क्योंकि have to फलस्तीन हमेशा sharp isolate ऑक्यूपेशन में रहा है। हमें the हर तरह genocide के हालात के लिए तैयार after करना चाहिए occupation. और मेहनत जारी So there रखना is a lot चाहिए। of work to do. The work about not अभी only भी about ऑक्यूपेशन genocide, में but है, the work अभी the work बहुत of सारे काम करने the हैं। work of easing सिर्फ डोनेशन जरूरी नहीं है, the अवेयरनेस फैलाना, political pressure on governments and also the companies that are supporting the बाइकॉट Israeli occupation. बहुत जरूरी है, और हुकूमत पे दबाव डालना, वो कंपनियां जो इसराइली ऑक्यूपेशन को मजीद बढ़ा रही है उनका बाइकॉट Would you like to? जरूरी है। Yeah, the only what I will reiterate is sort of the importance of making sure that the movement continues and make sure that folks know मैं sort of कहूंगी the कि narrative तहरीक का that this ceasefire जारी is, रहना जरूरी है। because we can't afford जो for there तहरीक है to be जारी a रहे, lull और in सीज फायर की जो you know, our हकीकी cries for बयानियां justice हैं for Gaza and for उसको हम Palestine, and we have लोगों to तक पहुंचाएं। ensure that folks know that the genocide continues, हमें and that यकीनी बनाना चाहिए, लोगों को imperialism पता continues, and हो imperialism कि is नस्ल what कशी अब भी जारी है, was one of the main साम्राज्यत obstacles to being जारी है। able to stop this genocide in the past 2 years, because many states that could have acted इस नस्ल कशी को रोकने के लिए सबसे बड़ी didn't रुकावट act साम्राज्यत as है। they could जिस or तरह should से have, not just for the reason Zionism, but because they too want to ये साम्राज्यी imperialism. ताकतों को एक्ट करना था, उन्होंने नहीं And so we किया, have to continue क्योंकि to असल में support ये Gaza donations. We have to ज़हूनी continue to कब्जा talk जो about है ये legitimacy of अमरीकी Palestinian साम्राज्य से बहुत resistance जुड़ा हुआ है। and the right to resist under हमें international law, as मुस्तकिल this ये tribunal बात करना चाहिए has been कि is setting out to फलस्तीनियों do. का हक है कि वो We have to अपनी आज़ादी के लिए continue जद्दोजहद करें और उसको call रिजिस्ट करें। for all हमें ये complicit बात Palestinian मुस्तकिल governments to be held बोलते रहना accountable, चाहिए and for Israel to be कि held accountable. जितनी We have to continue to वेस्टर्न fight. We have to हुकूमतें हैं continue वो to जवाबदेह हैं कि वो उनकी माली और दीगर you know तरीके से उसकी जो to मदद कर रहे हैं उनको boycott, एक्सपोज करना, ये to help काम बहुत जरूरी isolate है। the Zionist entity, both बाइकआउट का जारी economically, रखना बहुत politically, and जरूरी है, socially and culturally. ताकि जायनिस्ट And कॉरपोरेशन को we have to आइसोलेट also किया जाए, ensure, and ना speaking सिर्फ माशी तौर पे from someone बल्कि who सियासी lives तौर at the पे। imperialist core, you know, we need to work to de-link our own economies from the imperialist economy. All of this is what is driving हमें has been हमें driving अपनी मईशत को the साम्राज्यी Zionist मईशत से भी project in काटना Palestine चाहिए and the region. ताकि हम उसका हिस्सा ना You know, बने। we तो need डीलिंग to करना look साम्राज्यी मईशत से हमारी अपनी लोकल मईशत को, around वो these बहुत जरूरी है। connections, and also सियासी I तालीम think it's a good इस moment to remind इस ourselves
इस जुड़त को, इस जो ताना बाना है इसराइल का और मगरबी ताकतों का और अमेरिका का और साम्राज्य, ये इस ताने बाने को जोड़ना और इसे लोगों तक बताना बहुत अहम है। सियासी तालीम देना, फलस्तीनी सियासी कैदियों कैदियों 11,000 फलस्तीनी को पकड़ा हुआ है और बहुत सारे लोग गायब हैं। और इन जेलों में जो सूरत हाल है, जो 11,000 कैदी हैं, उनकी बहुत ये सबसे बुरी मिसाल हो सकती है पूरी दुनिया में कि जिस हालत में उनको कैद रखा गया है। जो गायब है वो अलग है। ये सारे बहुत बड़े बड़े काम हैं, लेकिन मेरे ख्याल से हमें इस तरह का फोरम जो आज हो रहा है, इसी तरह का ट्राइब्यूनल जो होगा, ये बहुत अहम है इन चीजों के लिए। बहुत शुक्रिया। On social media, and we have few questions. One of them is, let me see, what role does a people's tribunal play in solidarity movement building for Palestine? And any सोशल मीडिया में एक सवाल आया है कि पीपुल्स ट्राइब्यूनल सॉलिडरिटी मूवमेंट में क्या किरदार अदा कर सकती है। So it is about the again, what role does People's Tribunal play in solidarity movement building for Palestine? I mean, I can start. I think that the same role, I think it मैं can शुरू play कर सकती in हूँ मेरे building ख्याल से solidarity with any वही किरदार struggle, which is to offer a platform जो कि किसी भी आज़ादी के to जद्दोजहद में understand हो सकता है कि ये एक प्लेटफॉर्म पेश करता है, to understand the प्लेटफॉर्म narrative देता है of the Palestinian ताकि national आप liberation समझ movement, सकें to फ़लस्तीनी जद्दोजहद करने understand वालों की बयानियों को, Zionist entity उनकी is बयानियों को and the समझने के crimes लिए it's committed ये एक अच्छा and what प्लेटफॉर्म it, होगा। ये बताने crimes के of लिए कि imperialism, ज़ायनिस्ट एंटिटी क्या है, ज़ायनिस्ट to be able रियासत क्या है to point us और वो in किस the तरह से direction अपनी of कब्जे को यकीनी बना रही है और इसका क्या ताल्लुक है अमेरिकी साम्राज्य से। ये सब, ये प्लेटफॉर्म, ये बड़ी चीजें समझने हमें मदद कर सकता है। फलस्तीनी आवाम के लिए इंसाफ कैसे हो सकता है, वो कैसा इंसाफ है जो फलस्तीनी आवाम को मुकम्मल इंसाफ दिलाएगा। ये ट्राइब्यूनल जो है मजमूई तौर पे, ये फलस्तीन के बारे में हो या फिलीपींस के बारे में हो, किसी भी बारे में हो, इसका सबसे मजबूत मिसाल ये है कि इससे आज़ादी की जद्दोजहद, आज़ादी तहरीकों के बीच में एक यकजहती क्या सिलसिला बनता है। or to Venezuela, these are opportunities for us to hear, directly from the grassroots, from those हम on ये the front वॉशिंगटन में lines करें of struggle, या that हम we वेनेजुएला में करें hear या mainstream हम media, ब्रसेल्स that में we करें really या हम hear, बासुला में करें, ये in मौका the United हमें Nations. फराहम And करता so I है think that कि हम it's an incredibly powerful way to sort of इन build आवाज़ों को सुने understanding, जो to build जिनको मौका political नहीं clarity, मिलता as I और वो said, अपनी about आवाज़ और what कहानियाँ exactly सुनाए। is taking ये place. बहुत ही ताकतवर तरीका है And that helps to sort of build consistent, I think, like यकजहती बिल्ड करने का, इंसाफ के उसूल के लिए, इस्तेसाल के खात्मे के लिए Thank you very much, और Sarah. जुल्म के खात्मे के लिए। Are there, Sarah Weil, would you like to also comment on this? If not, we could go to the Okay, I'll comment. Yes. I think one important role that a tribunal can play. मेरे I ख्याल was से deeply involved in the ये tribunal ट्राइब्यूनल एक after the अहम Iraq किरदार war, और अदा करता held है। hearings in I think 19 countries इराक where वॉर members of के the बाद जो tribunal ट्राइब्यूनल हुई थी, मैं उसमें was attended. शामिल थी, जिसमें We published 19 a मुल्कों से book लोग and a शामिल हुए video थे, and हजारों लोग tried आए to थे।
हमने detail इसको all of the किताब में और evidence वीडियो के in जरिए भी this छापा area था और and कोशिश की कि local hearings हम and तमाम trials. शवाहिद और हकायक और Uh, मटेरियल को जमा करें और वो हमने hearing छापा और injustice वीडियो की शक्ल simply, में भी लेके आए थे, the whole world is appalled. जहाँ Impunity or the नाइंसाफी arrogance बहुत is so गहरी हो, overwhelming. बहुत शफाक हो It does और give real उनका weight मदावा and नहीं हो voice रहा to हो, people to करने वालों को कोई have a पूछने वाला ना tribunal हो। that says yes, तो ये लोगों को has some आवाज stamp देने on का it एक as तरीका है। judges and ट्राइब्यूनल people who are लोगों named को as आवाज देता है prosecutors and कि review the evidence हाँ, कुछ to लोग say हैं yes, this is a जो real हकायक और सच violation को सुनना of चाहते हैं, international law, जो of शवाहिद को human सुनना चाहते rights हैं, law, जो and that states आलमी कवानीन हो रही हैं, जो उसकी public वायलेशन हो testimony, रही है, public record जो आलमी promise इंसानी हकूक है, really जो इसकी effective वायलेशन हो रही है, exercise, ये I would say, अवामी in many अदालत ways, and में, that means a lot to अवामी the people who शवाहिद की participate रोशनी to में hear it, ये to बहुत give अहम testimony तरीका है। for it. जो इसको I was सुनते pleasantly हैं, surprised जो because, अपने of course, we don't try. शवाहिद इसमें देते So, हैं, so going अपने through a अपने tribunal वाकयात that says बताते हैं yes, इस this is a ट्राइब्यूनल में, violation. We did a उनके international लिए tribunal on U.S. ये illegal उनके crimes, लिए and ये we saw तरीका the है कि बता live सके उनके साथ testimony. Okay, क्या they hit 4 tanks वायलेशन हो and रही they है, destroyed जो 400 कवानीन की जो schools. वायलेशन हो रही है। And here's a list of every school that was bombed, 400 every hospital स्कूल that was bombed. उन्होंने That was important तोड़ दिया। to the people लिस्ट who है ये listened कौन सा स्कूल and also बॉम्ब हुआ, testimony उसमें from कितने those बच्चे who've been मरे, under कौन the सा अस्पताल, कितने were अस्पताल, under the roof. उसमें कितने मरीज होते थे। इन हकायक के साथ, इन शवाहिद के साथ So ये जो है I think अवामी the अदालती tribunal is ट्राइब्यूनल an important बहुत अहम है vehicle, लोगों के and लिए, especially to हकायक बताने के publish लिए। after और मैं testimony. Making it सबसे public रिक्वेस्ट करूंगा, means that मैं others रिक्वेस्ट will करूंगी use कि the इसको data पब्लिश collected किया जाए इसके and बाद, will ताकि एक reveal रिकॉर्ड इसका हो, ताकि बाद में कभी you इसको know, that इस्तेमाल किया tribunal जा did सके in fact एज अ रेफरेंस listen. So I कि both दुनिया ने it's कुछ किया both था important जब to ये मजालिम जारी also थे। think of the next steps afterwards, how you bring that tribunal आप लोग ये भी findings सोचे back इसके to बाद क्या people करना around है, the world and ट्राइब्यूनल how के you जो publish नताइज है it. उसको कैसे लोगों तक पहुंचाना है और उसको कैसे आप पब्लिश करेंगे। And Wael, would you like to Well, comment on the question? in fact, I share the same ideas with Sarah and Suzanne. Simply, criminals must मैं सारा सुजान ने जो बोला उसी that's it. So को you have आगे to बढ़ाऊंगा। that's it. क्रिमिनल जो जुर्म करता है वो अपने जुर्म का खमियाजा जरूर भुगते, Another वो question. उसको सजा मिले It says, लाजमी तौर पर। my question is related to religion propaganda used by Israel and how speakers मेरा see सवाल मजहबी this प्रोपेगेंडा है propaganda जो कि is इसराइल खास तौर से against कर रहा है, and इस how हवाले से। some the solidarity came from Islam. There's a question like that. ये जो फलस्तीन के साथ एकजहती है, Who would ये like to इस्लाम का इससे क्या ताल्लुक है? कौन शुरू करेगा? Could you repeat the question, please? Of course. The first part of the question is it says that the पहला सवाल ये है religion propaganda used by Israel. And also मजहबी प्रोपेगेंडा जो इसराइल कर रहा है। how some solidarity came from Islam to the दूसरा इसका ये है struggle. So this is two questions at the same time. कि किस तरह से मुसलमानों की यकजहती फलस्तीन के हवाले से अंदर दाखिल हुई। If you can comment on the question. The religion, what we have to make it clear to everyone supporting the Palestinian हमें ये समझना चाहिए is that the कि जो Palestinian लोग struggle भी against occupation फलस्तीनी आवाम की जदोजहद की occupation मदद as कर रहे part हैं, of the imperialist project. उनको समझना So चाहिए it's not about religion. कि It's what ये Netanyahu tried to सहूनियों के कब्जे के खिलाफ है, during his speeches जो to कि the world. साम्राज्यी So that's प्रोजेक्ट है। thank you. ये किसी मजहबी जंग का हिस्सा नहीं है, ना इस्लाम का Thank you है, very much. ये नेतन्याहू और साम्राज्य का Sarah, गंजू। Suzanne, would you like to comment?
Sarah, do you want to go ahead? Okay. From the very beginning, Zionism has used religion as a way to justify its शुरू से ही existence and its सैनियों ने crimes. सौनियत Its में existence मजहब as को इस्तेमाल a किया proxy or a अपने protectorate अपने आप को बरकरार for रखने the के front लिए, line for अपने British जराइम को US जारी रखने के लिए। imperialism. It was always justified पहले वो फ्रंट लाइन थे ब्रिटिश के, फिर बाद में अमेरिका के। Holocaust against Jewish people in Europe, पहले होलोकास्ट but that became के जूइश पीपल जो है यहूदी अमेरिका में थे, crimes इंडिया वाले से। against the Arab population. There have been very important फिर roles अरबी अवाम के continued खिलाफ Zionist Jewish people to play in speaking out against this and saying no, it has nothing to do एंटी with ज़ायनिस्ट being जूइश it has everything to do सहूनियों with के खिलाफ imperialism एक अच्छी and colonialism बड़ी and मुनज़्ज़म settler तहरीक है and it's यहूदियों की। rejected. सारे यहूदी सहूनी नहीं है In the last जो 2 years, we've फ़लस्तीनियों seen पे जुल्म more करते हैं या उनकी ज़मीन rally पे कब्जा by करते हैं। यहूदियों की anti-Zionist अपनी Jewish तहरीक activists है who've moved सहूनियत के खिलाफ, originally from being against जहाँ horrible crimes of Zionism to actually becoming anti-Zionist. That was a progression of a whole part of particularly Jewish youth in the US who rejected everything that had been inculcated by यहूदी their parents, अमेरिका by their में family, by their culture. यहूदी नौजवान Big खास step तौर से forward. इसको उसको Now, मुख्तलिफ नज़र से Zionism देखते हैं was also और used सहूनियत को and built in और the उनके US मुजालिम को by का Christian इनकार करते हैं। fundamentalists, what they call Christian Zionists. There are more Christian Zionists than there are Jewish लेकिन Zionists in the US. They're very क्रिश्चियन well जायनिस्ट big ने mega churches. जो सहूनी It जायनिस्ट की was मदद part of की। the US sort of ये कह रही हैं कि एक तरफ gathering support ईसाई levels जायनिस्ट using हैं, एक तरफ यहूदी जायनिस्ट हैं। religion does play a जायनिस्ट वो role in है this, and जो it's कि important जबरदस्ती for जबर के जरिए particularly लोगों Jewish पे voices अपनी speaking out and मर्जी मुसलत करना चाहता Christian है Zionists और rejecting एक that जगह से as दूसरी जगह the लोगों way in को which they are also भगाकर being अपनी used. मर्जी मुसलत Now, करना चाहता है within और it उसके was लिए well हर understood तरह के that जुल्म Israel's मजालिम whole war तशद्दुद को इस्तेमाल कर on सकता है। Palestine is also intentionally in the way it is cast against Islam. And that also needs to be recognized. And we've seen it in the US as such a और weapon, ये जो particularly since ये जो सहूनियों का we could go काम on, है, ये जो where जंग है, ये इस्लाम के Muslim खिलाफ population समझा in the जाता है। US has been criminalized and demonized in the media in really racist ways. Now the response around the world is to be 9/11 के बाद भी ये हुआ, for वेस्टर्न Palestine, मीडिया for ने the और बहुत Palestinians, सारे लोगों ने and for the right to उसके resistance. बाद I mean, understand मुसलमानों my को opinion on this, काफी निशाना बनाया। and the role of Hamas and Islamic Jihad, they played an important role in building resistance, and it was done हमास as a ने और response इस्लामिक जिहाद ने बहुत but अहम also किरदार किया है with मुजाहिमत की तहरीक modern खड़ा ties करने में, with secular एक resistance इस्लामी to फौज के support तौर the पे। Palestinian लेकिन population. So लेकिन दूसरे सेकुलर ग्रुप्स के religion can play साथ an important and मिलके progressive role, हमास and it ने can also be इस used जद्दोजहद by को the किया। ruling class in रिलीजन very मजहब एक reactionary ways to whip people up into अच्छा रोल भी प्ले कर सकता है, लेकिन रिलीजन जो है a reactionary एक view. So I मनफी think we gotta किरदार भी work अदा कर through it and सकता है understand और its ये एक contradictions रिएक्शनरी and फाइटिंग में how तब्दील हो सकता है। हमें देखना चाहिए Thank you very कि much. हम इसमें से कैसे सही रास्ता निकालें। Would you like to comment about the question? Yeah, I think what I would like to add is that I want to मैं re-emphasize ये what Sarah आगे already बढ़ाना चाहूंगी mentioned about the role of Islamophobia. कि Right. I think that is something that has been wielded by Zionism and imperialism, like other forms of racism and white supremacy, to justify ये colonialism, to justify इस्लामोफोबिया जो है वो subjugation, and इसराइल but I और think that it's also अमेरिका का फैलाया something हुआ that है। has to happen with ये the जो broader left, जुल्म the को global left,
बढ़ाने के लिए इस तरह के हथियार को इस्तेमाल किया I गया है, think that मजहब को I have इस्तेमाल करता seen है और यहाँ hesitancy इस्लाम on को the किया part गया है। of मेरे ख्याल से मैंने many देखा है who do support the कि Palestinian people to like to बहुत stab सारे वो back लोग जो actually फलस्तीनी saying की that मदद they करते हैं, support the resistance, whether that resistance is left or Hamas or Islamic Jihad or Hezbollah, right? And I think it is learned Islamophobia that like prevents people or like acts as a block or a challenge to people understanding that these movements अब are लोगों ने legitimate ये and बोलना छोड़ also दिया have है the right कि to ये exist इस्लामी legally, politically, जिहाद and है morally, या right? ये हमास का इस्लामी जंग है। And for people to लोग think इतने that like बाशऊर हो once गए हैं you कि वो have समझ रहे हैं कि इसका once you have मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, made a और ये statement शऊर में saying that बढ़ोतरी की एक Hamas निशानी is है। a legitimate लेकिन liberation अगर आप struggle, ये करेंगे इस that बुनियाद के लिए, Hamas is a हमास legitimate body of resistance that's part of the एक Palestinian struggle and they should be जायज supporting like any other body of resistance in मज़ाहमत की Palestine. बॉडी है। Would you have an easier time saying that if it wasn't a religious if it wasn't a religious organization? I think that the truth is that the people हाँ, on the left or तो ये Islamic कह left रही हैं have कि to ask themselves ये that इस तरह question, से बांटा right? जाता है, सिर्फ हमास नहीं Because और some दीगर small तंजीमें भी इस in मज़ाहमत different के साथ हैं। places in the लेकिन world, अगर मजहब के बुनियाद पे it could be liberation इन theology जद्दोजहद को देखा that जाएगा, that's तो saying that यही like we need to सहनियों struggle का against मंसूबा है imperialism or कि Israel मजहबी is प्रोपेगेंडा के is, जरिए is sort of मजहब driven को by the बीच में beliefs लाकर of the जो है people of इसको Gaza that happen to be इस यकजहती का a very खात्मा किया religious जाए, society. और I यही think साजिश that the है left also साम्राज्य needs to की like think about और that उसकी how सहूनियों की। imperialism has used these kind of racist tropes and think for themselves of whether or not that they have themselves have been influenced by that. Thank you very much, Suzanne. Our Q&A time is coming to an end. Maybe the last one or maybe one more. There's a question for Wael. The question says, what is the role of the resistance in the first phase of ceasefire? वाइल के लिए सवाल है The role of the resistance. कि सीज फायर के फर्स्ट फेज में Well, the किस तरह resistance, का रेजिस्टेंस हो सकता है? we have the armed resistance. We have also the political resistance. हम Because right हम now, मुसल्लह जद्दोजहद करते हैं, even if we हम are सियासी facing जद्दोजहद ceasefire, करते but there हैं, is a क्योंकि lot of अभी work on the अगर सीज फायर भी है you know that तो बहुत due सारी to the war जंगें जमीन के ऊपर हो रही war हैं on Gaza, the Zionist military used गाजा के दौरान के huge तहत quantity of bombs, and right now on the ground, even we know that even after the ceasefire, we will have a lot of victims because of the bombs सीज being फायर के बाद भी occupied बम उड़ाया जा रहा है, constantly. बम मारा जा रहा The है, following अ, statement of जमीन के the ऊपर लोगों के Palestinian हड्डियां, लोगों के बाजू civil अब भी defense हैं। of the ground, where they found some bombs which make फलस्तीनी like सिविल 2 डिफेंस kilotons जमीन के per ऊपर हैं second. अभी। So there is a lot of work to do, a lot of work to वहाँ पे eliminate अभी भी the मुख्तलिफ occupation left on the ground, चीज़ें नज़र आ रही and हैं। अभी भी बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है, the steps of the क्योंकि ceasefire. The first कब्ज़ा step, अभी ख़त्म according नहीं to हुआ है। the deal, सीज़ फायर का the deal was to ये limit पहला स्टेप है सीज़ फायर का। Israeli soldiers to the other parties. डील Right ये था, now, मायदा they ये are हुआ था, trying, to इसराइली end फौजी जो this है, war. इसराइली फौजी अगली Some of them दूसरी soldiers तरफ जाएंगी। are under the destroyed buildings. They need to find them also. So there is a lot of work inside and कुछ outside. कुछ जो मगवी लोग हैं, अगवा किए हुए लोग हैं, वो उन बिल्डिंगों के नीचे हैं जो दब गई हैं और तबाह हो गई हैं, तो अभी उनको ढूंढना है। तो बहुत काम अभी रहता है, बहुत सारा काम है, ठीक है। But our time is limited. But we are going to have other webinars as well.
I mean, this is just a start for building up events for the सोशल मीडिया में और भी सवाल आ रहे हैं, several लेकिन type of सवाल जवाब का events. टाइम खत्म हो गया है। Of course, लेकिन हम इस the तरह के वेबिनार और point is to करेंगे जिससे आपको मौका मिलेगा कि आप सवाल कर सकते to get a legal point of view about the what is happening. I would like to thank to our speakers, and मैं right now I think अपने तमाम we have स्पीकर्स to का stop, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा wrap up. We are already at और 2 अभी hours मैं right now. We hope हम इसको it's clear from the आप इस presentation सेशन को why ख़त्म करें। we need मुझे उम्मीद है this tribunal कि to प्रेजेंटेशन से hold क्लियर हो गया Zionists and होगा कि हमें imperialist क्यों perpetrators of the genocide इंटरनेशनल अवामी Zionist ट्राइब्यूनल करने की ज़रूरत है people. इसराइल के But खिलाफ hope it is also clear और that जो इसके tribunal is not हामी है event उनको कैसे of जवाबदेह the बनाया civil, जाए। nor और will be उम्मीद last है कि ये structure ट्राइब्यूनल जो है in the liberation ये of the कोई Palestinians. एक आखिरी काम नहीं है, It is the बल्कि Palestinian ये people themselves और who will आने वाले liberate their land. काम का एक हिस्सा The है। ending of the Zionist occupation will be an overall blow to फ़लस्तीनी the अवाम Palestinian अपनी ज़मीन की liberation, आज़ादी a खुद way हासिल that करें। will serve the interests of all people fighting for ये liberation in their own homelands. This tribunal will be a forum where the voices of the people themselves will testify ये to ट्राइब्यूनल एक ऐसा Palestinian फोरम होगा steadfastness जहाँ against the जहाँ crimes. अवाम खुद Ecocide अपने is लिए also गवाही narration, देंगे this और version बहादुरी of cultural दिखाएंगे। heritage also, and और जो other acts of genocide. माहौलियाती तबाही हो Again, रही है, we encourage माहौलियात का everyone to कत्ल हो रहा visit है the website where और ये जो more information लोगों के साथ जबरी फाकाकशी हो रही है, इसके खिलाफ जो है वो You can एक also प्लेटफॉर्म sign up होगा। for the Right to Resist email list ट्राइब्यूनल के to वेबसाइट get पे regular जाके आप updates on the मजीद मालूमात देख सकते preparations हैं। for the tribunal and other आप legal अपडेट लेने activities. के लिए भी वेबसाइट से You can also register anytime जो है वो in सब्सक्राइब कर Barcelona सकते on हैं। the website जैसे list. ये वेबिनार We will और also बार्सिलोना में जो हो रहा है and ट्राइब्यूनल, resources via उसमें social media. शामिल होने के लिए भी अपने Subscribe आप to को the International रजिस्टर कर People's सकते Front to stay to see all these updates. The Instagram handle for हैं। the इंटरनेशनल पीपल्स फ्रंट के वेबसाइट को International सब्सक्राइब People's कराएं Front. ताकि आपको अपडेट मिल जाए International रहे। People's Front, basically. Join the growing list of endorsers of the tribunal. Endorse at our website. If you already endorsed, please एंडोर्समेंट की बढ़ती हुई लिस्ट में अपने आप को शामिल करें और अपने दोस्तेदारों को भी दावत दें कि वो इस ट्राइब्यूनल को इंडोर्स करें। उनको बताएं कि क्यों उन्हें इंडोर्स करना चाहिए। अगर हो सके तो एक मैसेज करें वीडियो कि आप क्यों इसको इंडोर्स कर रहे हैं। 1 से 2 मिनट का वीडियो आप अपलोड कर सकते हैं। इंटरनेशनल पीपल ट्राइब्यूनल के लिए प्लीज चंदा डोनेशन दें। डोनेशन का डिटेल जो है वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। To talk about making donation. If you are a member of a press, please consider covering the tribunal and publishing articles written by our organizers and endorsers. अगर आप एक प्रेस के मेंबर हैं, मीडिया के हैं, तो इस ट्राइब्यूनल को कवरेज करने का काम करें। हमारी प्रेस रिलीज हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी और सोशल मीडिया पे मिल जाएगी। हम इस तरह के जो आज सेशन हुआ है तालीमी वो और करेंगे। हमारा अगला जो होगा वो अक्टूबर 26 को होगा, जिसमें हम जराइम और माहौलियाती तबाही, माहौलियाती कत्ल के असरात पे वो होगा। आप रजिस्टर कर सकते हैं इसके लिए भी और आने वाले दूसरे इवेंट के लिए, और ईमेल लिस्ट के सर पे भी और अनाउंसमेंट आएगा। Finally, we will be using the results of this tribunal to hold governments and आखिर में international institutions accountable for their support. ट्राइब्यूनल का रिजल्ट हम हुकूमतों को जवाबदेह बनाने के लिए करेंगे।
कि जो अमेरिका और सहयोगी ताकतों की जो नस्लकुशी है उसको हिमायत करती है और एक सिस्टम चेंज के लिए इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर सकते हैं आलमी सतह पे और इस ट्रिब्यूनल को हम अवामी तहरीकों की मास मूवमेंट अवामी तहरीकों की ताकत को दिखाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जहाँ भी हैं दुनिया में आप इसकी हिमायत कर सकते हैं। आप इन वसाइल को जो ट्रिब्यूनल के बाद होगा आप बाद में कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम अपने पहले वेबिनार का खात्मा करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज राब्ते में रहें और जैसे हम कहते हैं कि आलमी यकजहती जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया।